Hello everyone, how are you all? I hope you are all are very happy. Happy तो हो गए ही, एनडीए का एग्जाम हो गया है और एनडीए के एग्जाम में इंग्लिश में you have done a very good performance. और कैसे पता है हमें? Because जितने क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में थे 45 question were in your command in English. Yeah, I challenge this. My students, they were having 45 questions in their command. तो 50 में से अगर 45 questions आपकी command में है तो happy होना तो बनता है. That is the thing कि you all will come out with the flying colors and you all will make me proud of you. Yes, I challenge this thing to you कि जितने भी questions NDA English exam में आएंगे, you will be confident enough to crack the NDA exam. और जब result आएगा तो ये चीज आप खुद देखेंगे कि how you have performed and what you have achieved. Okay, so once again, I Neetu Ghai welcome you all to your own English class, that is English with Neetu ma'am. And today I am here with the complete analysis of English paper, that is NDA English exam 2020. So today I am going to analyze set number C of NDA exam 2020. Okay, no matter I am analyzing set C, set A, B, D, the questions have been shuffled up. तो अगर मैं set C भी analyze कर रही हूँ, set C भी explain कर रही हूँ, जिनके set A, B and D है, the question numberings are different, बाकी सब same है. The questions are just shuffled up. You just have the check on your papers and the answers which you have marked correct. So just check out with the answer key and the explanation I am giving to you for the NDA English exam 2020. So I congratulate all my students who have attempted the NDA examination, and the NDA examination 2020 just proves that it is the examination which you have achieved, in which you have achieved lot of marks. So let's check the analysis with me, English expert Neetu Ghai. I'll be here the whole 2 hours with you to analyze the English examination. जस्ट पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं हम, पेपर का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं हम, सेंटेंसेस का, क्वेश्चंस का एंड ऑप्शंस आल्सो. जैसे कि आपने अगर मेरी क्लासेस अटेंड की है, आई ऑलवेज एनालाइज द ऑप्शंस आल्सो, नॉट ओनली द क्वेश्चन बट आल्सो द ऑप्शंस, सो दैट वो ऑप्शंस जो हैं कई बार वो भी क्वेश्चन के फॉर्म में आपको एंटोनिम्स या सिनोनिम्स के फॉर्म में आते हैं. तो यू मस्ट नो the detail of the question and the detail of the options also. तभी आपकी vocabulary expand होती है और update होती है. और अगर आपने यही टेक्निक से पढ़ाई की है तो it is a piece of cake for you all. तो NDA examination 2020 English subject is a piece of cake for my students who have studied with me. Okay, so let's start the complete analysis of English exam NDA 2020 with your English expert Neetu Ghai. So students, we are the one, Defense Services Academy is the one who is here with the complete analysis of NDA examination 2020, and that also subject-wise analysis and that also topic-wise analysis. So I, Neetu Ghai, your English expert, will be here with the complete analysis of NDA exam 2020 and that also topic-wise. Okay, so if I'm talking about set C, in set C, the topic 1, yeah, part A was prepositions. Now, if I talk about the level of the paper was easy. Yeah, frankly, I am speaking, the level of the paper was easy. But easy उनके लिए था जिन्होंने पढ़ाई की है. जिन्होंने पढ़ाई की है बेटा, उनके लिए easy, difficult कुछ नहीं होता. जो difficult है वो भी easy हो जाता है. तो जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है उनके लिए easy भी difficult है. But for my students, the NDA English exam was a piece of cake. That means it was easy for them to solve the whole paper. Okay, if I talk about part A prepositions, इस बार जो हमारा topic रहता है sentence completion. Sentence completion means fill in the blanks. उसको skip करके they have given the fill in the blanks on the whole topic prepositions. सिर्फ prepositions के ही fill in the blanks दे दिए हैं. That means you don't have to get confused कि इसमें noun आएगा, pronoun आएगा, verb आएगा, verb का कौन सा form आएगा, कुछ भी confusion नहीं था. सिर्फ prepositions, टॉपिक भी आपको prepositions दिए थे. That means preposition ही fill up करने हैं और options में भी सिर्फ prepositions. Of course,
प्रेपोजिशन का टॉपिक है तो प्रेपोजिशंस में ही ऑप्शन में से चूज करना होगा. तो दैट वाज एन इजी थिंग. ओके, द सेकंड थिंग व्हिच आई वांट टू मेंशन, द कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक वाज स्किप्ड दिस ईयर. दैट मींस जो कॉम्प्रिहेंशन हर साल आता था वो इस बार नहीं आया है. नेक्स्ट थिंग, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी इस साल नहीं आया. बट नॉट टू वरी, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कुछ भी रहे दैट विल बी इन योर कमांड. The certainty about NDA exam is the uncertainty. एक ही certainty है कि सिर्फ और सिर्फ uncertainty है. That means you cannot even imagine कि पेपर में क्या आएगा. But अगर आपके concepts clear हैं तो पेपर में कुछ भी आए, you will be there to solve the paper. So let's start part A, prepositions. So students, check out the first question under the heading prepositions. You fill up with the prepositions. See, simulations of the 20th century by climate models that include करना, अपने आप में लेना, exclude करना, out करना. Exclude the observed increase dash greenhouse gases fail to simulate the increase in temperature over the second half of the 20th century. Okay. सपोज आपको इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, बट आई नो मेरे स्टूडेंट्स को आंसर समझ में आ गया है, बट स्टिल अगर कुछ भी नहीं आ रहा, सीधा हिंट यहाँ पे दिया है इंक्रीज इन टेम्परेचर दिया है आपको. अब यहाँ देखो इंक्रीज डैश ग्रीन हाउस, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके यू कैन गेट द आंसर. व्हाट कैन बी द आंसर? इन इंक्रीज इन greenhouse gases fail to simulate the increase in temperature. So easy thing to attempt and easy thing to score marks. Okay, so I hope this is clear to you. Now check out the next question. Okay, in extremely poor societies, children can be put to work dash a young age and are therefore a source of income. अब बात किसकी हो रही है? Young age में बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है. What are the options? In, on, by, at. यंग एज में लगा दिया जाता है. एज आई हैव टोल्ड यू, हम हिंदी में इनको में बोलते हैं. ओके, लेकिन इंग्लिश में जब हम प्रेपोजिशंस का यूसेज कर रहे हैं तो प्रेपोजिशंस में इन मतलब में नहीं, इन मतलब अंदर. ओके, तो क्या यंग एज के अंदर? नो, यंग एज पर. तो आंसर है एट. तो इट विल बी एट हियर. तो वर्क एट अ यंग एज, छोटी उम्र में ही काम पर लग जाते हैं. तो आंसर इज एट. साइमल्टेनियसली आप अपने आंसर्स भी चेक करते जाइए और आप देखते जाइए हाउ मच मार्क्स यू हैव स्कोर्ड इन देयर. ओके ओके, पीपल हु आर अवर्स डैश हार्ड वर्क जनरली डू नॉट सक्सीड इन लाइफ. अब अगर मैं बात करूं अवर्स, my students know the meaning of aversion. We have done many times this word in the synonyms and antonyms. Aversion means dislike, a strong dislike or hatred, repulsion. Okay, aversion आप जिसको पसंद नहीं करते हो, आप जिससे दूर भागते हो, रिपेल होते हो. डिसलाइक है, नापसंद है. तो अगर जो लोग हार्ड वर्क से दूर भागते हैं जनरली डू नॉट सक्सीड इन लाइफ. सेंटेंस का मीनिंग ये आ रहा है. अब टू, अबाउट, एट, ऑन, इजी थिंग. एवर्ड्स अबाउट हार्ड वर्क? नो. हार्ड वर्क के बारे में नफरत करते हैं? नो. हार्ड वर्क पर नफरत करते हैं? हार्ड वर्क के ऊपर नफरत करते हैं? नो. हार्ड वर्क से नफरत करते हैं. जो हार्ड वर्क से दूर भागते हैं वो कभी भी लाइफ में सक्सीड नहीं हो सकते. ओके, सो दिस रूल अप्लाइज टू एवरीवन, टू मी, टू यू, टू एवरीवन. डोंट averse to hard work. Just do the hard work and success will come behind you. This is the logic. Okay, let's check out the next question. Okay, I have known her dash a long time. ये वाला रूल भी हमने काफी बार किया हुआ है. सी, लॉन्ग टाइम. हमने टेंसेस पढ़ा है, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा है, हमने सिंस और फॉर का यूसेज पढ़ा है. जब भी टाइम की बात हो रही है सिंस और फॉर का यूसेज होता है. सिंस स्टार्ट होता है या सिंस यूज होता है जहां से वो एक्शन स्टार्ट हुआ है. फॉर यूज होता है ड्यूरेशन के लिए. ओके, अब यहाँ पर ड्यूरेशन दी है, यहाँ पर ड्यूरेशन दी है लॉन्ग टाइम, तो सिंस तो नहीं आएगा. अगर होता सिंस 2000 स्टार्टिंग पॉइंट, अगर दिया होता
स्टार्टिंग पॉइंट तो हम सिंस यूज कर सकते हैं, ये आपको रूल पता है, बट यहाँ पे ड्यूरेशन दिया है. ओके, आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2014. आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे और अब तो एग्जांपल्स भी रट गए होंगे आपको. बिल्कुल, मैंने आपको बोला था एग्जांपल्स बस घोल के पी जाना और वही एग्जाम में आएंगे और वही एग्जाम में आया. ओके, तो यहाँ पर लॉन्ग टाइम दिया है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हैं, ये दोनों ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है. सिंस या फॉर में ही कंफ्यूजन है, तो फॉर इज द करेक्ट आंसर. आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्लियर? I hope this question is clear to you all. Now check out the next question. The next question says, I accepted the offer dash certain conditions. मैंने उसका offer कुछ certain conditions, terms and conditions में accept कर लिया. Terms and conditions में accept कर लिया. Now check out the options on, in, by, within. अब by और within तो नहीं है ऑप्शन में. कंफ्यूजन क्या होगा? कंफ्यूजन on and in में होगा. I accepted the offer on certain conditions या I accepted the offer in certain conditions. जो ऑफर मुझे दिया गया, जो प्रपोजल मुझे दिया गया, कुछ कंडीशंस में मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया. तो the correct answer is in and not on. Sometimes we just speak fluently, तो अगर हम बिल्कुल बोल रहे हैं तो हम on बोल देते हैं, but ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ग्रामेटिकली इन इज द करेक्ट आंसर टू एक्सेप्ट द ऑफर इन सर्टेन कंडीशंस. ओके, तो लेट्स चेक द नेक्स्ट. सो स्टूडेंट्स, सी द क्वेश्चन नंबर 6. शी इज अ वुमन डैश हम्बल ओरिजिन. नाउ सी, easy options. See this off, that means cancel करना, that means close करना, that means बंद करना. Put the fan off, put the fan on. Okay, तो ये तो आएगा नहीं. अब from, she is a woman from humble origin. Humble origin के through या humble origin से, no. Within भी wrong. Answer है of. She is a woman of humble origin. Okay, now the next. Check out. There is no cure dash common cold. Now at this time when we all are scared of COVID-19 कोरोना से सब डरे हुए हैं, तो कॉमन कोल्ड का कोई भी क्योर नहीं है. ओके, जैसे कोविड-19 का अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं आया, वैसे ही कॉमन कोल्ड का कोई क्योर नहीं है. नाउ चेक आउट द ऑप्शन. फॉर, ऑफ, टू, ऑन. स्टार्टिंग से नहीं, एंडिंग से स्टार्ट करते हैं. देयर इज नो क्योर ऑन द कॉमन कोल्ड. बिल्कुल बेसलेस है ये. देयर इज नो क्योर टू द कॉमन कोल्ड. नो. देयर इज नो क्योर ऑफ द कॉमन कोल्ड. द करेक्ट आंसर इज देयर इज नो क्योर फॉर द कॉमन कोल्ड. और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि ये आंसर्स जो हम दे रहे हैं उनको लॉजिकली यूज करना पता है, उनको ये सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं ये भी पता है, बिकॉज वी हैव प्रैक्टिस अ लॉट फॉर दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस. ओके, नाउ आई रैन डैश जॉन yesterday and it was a pleasant surprise. अब my students know this very well. We have done phrasal verbs. Remember phrasal verbs में we did ran into, and this type of sentence we have done in our practice set also, we have done in our classroom also. You have just solved this type of sentences in your book also, so you are sure. Ran into means to meet someone suddenly or accidentally, किसी से एकदम मिल जाना. Okay, now I ran dash John yesterday. आपको बता भी रहे हैं वो कि वो जॉन से मिले. अगर अब आपको नहीं समझ में आ रहा, चेक आउट दिस. I ran by John. जॉन के साथ पीछे by, तो ये तो मेंशन ही नहीं. ऑफ तो वैसे ही क्रॉस हो जाएगा, ऑफ तो आएगा ही नहीं. अब beside मतलब उसके साथ. See the difference. Beside and besides. We have done the difference between the two words. तो beside और besides means in addition to, beside means साथ, बाजू में. ओके, तो क्या मैं जॉन के बाजू में भाग रहा था? I ran beside John. जॉन के बाजू में क्यों भागूंगा? And it was a pleasant surprise. भाग के beside में, बाजू में भागना कोई सेंस नहीं बन रहा, तो ये भी गलत. I ran into and I ran by. तो by भी नहीं, आंसर है ran into, because जो हमने phrasal verb किए थे, I just mentioned this very clearly, that ran into means to meet someone accidentally or to meet someone suddenly. और आप लोगों ने किया है ये, 100% किया है. Okay, check out the next question. Now, my grandmother enjoyed boating the lovely lake.
अब यार इससे इजी पेपर अगर आप मांगोगे तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ना, यूपीएससी लेवल का पेपर है और इतने इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? ओके, तो लेट्स चेक. माय ग्रैंडमदर एंजॉयड बोटिंग इन, ऑन, बिसाइड, विद इन. अब अगेन बिसाइड मतलब बाजू में, तो ये तो क्रॉस हो गया. विद इन, माय ग्रैंडमदर एंजॉयड बोटिंग विद इन द लवली लेक. लवली लेक के बीच में ही बोटिंग करती हैं कि लवली लेक में बोटिंग करती हैं? आंसर इज इन. ऑन नहीं, लवली लेक के ऊपर नहीं, विद इन भी नहीं, तो आंसर इज in. Easy one. My grandmother enjoyed boating in the lovely lake. Now students, question number 10 of section A, preposition. This is the last question of section A, preposition, that is fill in the blanks or that is sentence completion. So check out this. He visits the needy to relieve them. Now what do you mean by relieve them? To free them. Free करना, relieve करना. Okay. Free them, dash their sufferings and poverty. वो जरूरतमंदों से मिलता है ताकि वो उनको उनकी तकलीफों से छुटकारा दिला पाए, उनकी परेशानी से छुटकारा दिला पाए. ओके, नाउ ही विजिट्स द नीडी टू रिलीव देम ऑन देयर सफरिंग्स. नो, ऑफ देयर सफरिंग्स. ये ऑफ तो गलत हो गया. अगेन दिस ऑफ मींस टू कैंसिल, टू रिजेक्ट, टू पुट ऑफ, तो ये तो गलत हो गया. अब ये ऑफ और फ्रॉम बचे हैं. ही विजिट्स द नीडी टू रिलीव देम फ्रॉम देयर सफरिंग्स या ऑफ देयर सफरिंग्स, उनको उनकी तकलीफों से छुटकारा दिला पाए, तो आंसर इज फ्रॉम. ओके, नाउ 10 आउट ऑफ 10 या 8 आउट ऑफ 10 या 9 आउट ऑफ 10, इससे कम स्कोर हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे भाई, बिकॉज इससे ज्यादा प्रैक्टिस हमने कराई है, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हमने कराई है. ओके, देखिए मेरी खुशी बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं हो पा रही है, बिकॉज आई नो माय स्टूडेंट्स विल कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स इन दिस एग्जाम. तो लेट्स चेक सेक्शन बी. Now part B of set C NDA 2020 English exam, and part B is spotting errors. Now spotting errors, you must have known कि spotting errors में you will be getting one sentence and the sentence will be divided into 4 parts and you have to spot the error in the sentence, and if there is no error you have to choose the option D, that is no error sentence. Okay, so let's check. Okay, the directions, I have explained you the directions, still you can have a look on the directions. Now we'll start the question. Okay, question number 11. Now the sequence of the question can be different, the number of the questions can be different in different sets, but the questions are same. If this is 11 in set C, it can be 21 or 31 in set A, 1 in set B. So that means it's just shuffling of the numbers, shuffling of the orders, the sentences are same. So let's check out this question. This building comprises of 6 houses, 3 parking lots and 1 basement. Okay, अब see, this building, हमने subject, verb, agreement बहुत 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 अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से. Okay, see, this building, singular subject. Singular subject प्रेजेंट टेंस में V1 प्लस S या V1 प्लस ES लेता है. दिस यू ऑल नो वेरी वेल. नाउ सी, दिस बिल्डिंग कंप्राइजेज, यहाँ पर S लगा है, दैट मीन्स ये ठीक है, ये ठीक है. लेकिन अब देखो, उनको पता है कि आप बहुत होशियार हो, उनको पता है आपका लेवल, तो वो एरर भी ऐसा देंगे कि जो करेक्ट ही लगे, जो एरर लगे ही नहीं. सी, कंप्राइजेज के साथ इन्होंने ऑफ दे दिया. आपको यहां तक तो उन्होंने करेक्टली फॉलो किया कि आप ये देखोगे और इसको देख के लगेगा कि हाँ ये तो करेक्ट है, पर आगे तो पढ़ो. कंप्राइजेज ऑफ. नाउ वी हैव डन वन वर्ड, कंसिस्ट ऑफ. कंसिस्ट ऑफ मींस इंक्लूड. ठीक है, कंसिस्ट के साथ आप ऑफ लगा सकते हो, लेकिन कंसिस्ट ऑफ का एक और मीनिंग है कंप्राइजेज या कंप्राइज. अब कंप्राइजेस या कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता. कंप्राइजेस मींस उसमें वो इंक्लूड है. कंसिस्ट के साथ ऑफ लगेगा, बट कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगेगा. तो एरर इज दिस, कंप्राइजेस के साथ ऑफ नहीं चाहिए. सी द सेंटेंस विदाउट ऑफ, अगर आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा. सी, दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस 6 houses, 3 parking lots and 1 basement. And I am sure my students, they know this sentence. हमने ये sentence आपके practice sessions में किया है.
मैंने जब आपको स्पॉटिंग द एरर्स के बहुत सारे सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करवाई थी, ये सेंटेंस उसमें से एक है। और मैंने तब भी बोला था कि जितने हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे, और वो मेरी बात सच हुई है। ये सारे सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस पेपर में कर चुके हैं। ओके, तो आई होप द सेंटेंस इज क्लियर टू यू। द एरर इज इन बी पार्ट बिकॉज ऑफ इज द erroneous word given here. Now I look forward to meet you. अब ऐसा सेंटेंस भी हमने किया है। लुक फॉरवर्ड के बाद टू मीट नहीं। अब यहाँ आपको क्यों कंफ्यूज कर दिया? सी, आपने इंफिनिटिव पढ़ा है तो 2 प्लस V1, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने 2 प्लस V1 दे दिया। बट लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, दिस इज द करेक्ट आंसर। लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, द सीक्वेंस इज लाइक दिस। या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, लेकिन यहाँ पर आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। अब जैसा मैंने आपको बोला है, दे नो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी लेवल, तो कुछ क्वेश्चंस तो वो उस लेवल के देंगे ना कि आप उनको पता है कि आपकी तैयारी कितनी हार्ड है, तो उस लेवल के क्वेश्चंस ये होते हैं। दैट मीन्स उनको पता है कि बच्चे कहाँ क्या चीज करेंगे। ओके, तो टू मीट नहीं होगा, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, तो एरर इज इन बी पार्ट। Okay, so check out the question number 13, students. I cannot cope up with this pressure. Cope करना, बर्दाश्त करना, face करना, handle करना. Now, whenever we use the word cope, cope is never followed with up. Cope is always followed by with. तो cope is never and never followed by up. Cope के साथ कभी भी up नहीं लगता. Cope के साथ हमेशा with लगता है. तो erroneous part is this. कोप अप नहीं होना चाहिए था। I cannot cope with this pressure and that is enough. मैं इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोप अप नहीं, तो erroneous part is up. Up is wrongly used here, तो error is in B part. B part is the answer for the question number 13. Now check out question number 14. I came to this place by walk. यार by walk इससे easy question तो आप सोच ही नहीं सकते, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते इन द यूपीएससी लेवल। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा भी अगर कॉमन सेंस या लॉजिक लगाओगे, बाय वॉक, हैव यू यूज्ड दिस फ्रेज एनी टाइम इन योर सेंटेंस? नो, नेवर। तो आई केम टू दिस प्लेस बाय वॉक इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो ये पार्ट सेंटेंस में। अगर होता आई केम हियर बाय कार, अब कार से आई केम हियर, आई केम टू दिस प्लेस बाय कार, तो ठीक है। I came here on foot, तो ठीक है। बाय वॉक नहीं, बाय वॉक नहीं, बाय के साथ कभी भी V1 नहीं लगता, कभी भी V1 नहीं लगता। तो यहाँ तो या तो बाय वॉकिंग होता तो इट कैन बी करेक्ट, क्लियर, या बाय कार होता या ऑन फुट होता तो करेक्ट होता, बट बाय वॉक इज रॉन्ग। तो यहाँ पर वॉक इज द erroneous part, आंसर इज C, तो C is the answer for question number 14. Now what is the time in your watch? यार again an easy question. What is the time in your watch? कभी भी हम ये नहीं बोलते कि आपकी वॉच में टाइम क्या हुआ है, आपकी वॉच के हिसाब से टाइम क्या हुआ है। तो in your watch नहीं, in नहीं, आपकी घड़ी में टाइम क्या हुआ है? No. तो in is the erroneous part here. What is the time by your watch? This is the correct way. I always say sometimes whenever you are just speaking English, you use wrong words, और वो wrong words use करते करते that comes into your vocabulary कि ऐसे ही use होगा, but grammatically it is wrong. आप बोलते समय कैसे भी use कर लेते हो, लेकिन जब आप grammatically उस sentence को लिख रहे हो, it should be correct. It should be grammatically correct. Okay. So this is the correct answer for question number 15. So what is the time by your watch? Okay. So this sentence, the next one, the price of my dress is higher than that of yours. अब इस टाइप के सेंटेंस कम से कम हम 20 सेंटेंस कर चुके हैं। सेम ऐसे जब हम डिग्रीज कर रहे थे, जब हम एडजेक्टिव्स कर रहे थे, हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर रहे थे, हमने सेंटेंस कंप्लीशन किया है, इंप्रूवमेंट किया है, उसमें सब में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, हमने प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। तो आप बिल्कुल गलत करने का सवाल ही नहीं उठता है। ये अगर गलत किया ना तो you will get 1 from me in your class. Okay, the price of my dress is higher than. बात किसकी हो रही है? प्राइस की. The price of my dress is higher than. Higher than.
What is this? This is comparative degree. Comparative degree में हम adjective का second form लगाते हैं higher, और जब compare कर रहे हैं तो than. Comparative degree में higher than, ये correctly use है, ये भी correct है, ये भी correct है. अब यहाँ that of yours. अब see, अगर मैं इस sentence को ऐसे लिखूं, the price of my dress is higher than the price of your dress. Clear? अगर मैं इसको easy way में लिखूं, this is the easy way to write this sentence. अब check out this. Comparison किसका हो रहा है? Comparison हो रहा है price of my dress. किससे कंपेयर हो रहा है? प्राइस ऑफ योर ड्रेस. ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री किस में यूज होती है? जब दो पार्टी, दो यूनिट, दो चीजों का कंपैरिजन होता है. मेरी ड्रेस का कंपैरिजन आपकी ड्रेस से, मेरी ड्रेस के प्राइस का कंपैरिजन आपकी ड्रेस के प्राइस से. ओके, अगर मुझे ये पूरा पार्ट हटाना है, ये पूरा पार्ट हटाना है, तो क्या यहाँ मैं द प्राइस ऑफ योर ड्रेस की जगह अगर मैंने लिख दिया दैट ऑफ योर्स, तो क्या ये गलत है? हमने ये रूल्स में पढ़ा हुआ है. कंपैरेटिव डिग्री में जब सिंगुलर सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है तो हम दैट यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए दोज यूज करते हैं. तो प्राइस सिंगुलर है, तो यहाँ पर इन्होंने दैन के बाद दैट यूज किया है, बिल्कुल करेक्टली यूज किया है. ऑफ योर्स, यहाँ योर्स यूज किया है योर ड्रेस के लिए, योर ड्रेस के लिए योर्स यूज किया है. अब बताओ इसमें गलती कहाँ है? अरे गलती है ही नहीं, दिस इज द नो एरर सेंटेंस. अगर गलती होगी तो ढूंढोगे ना. इतना करेक्ट सेंटेंस दे दिया, और वो भी इतना इजी दे दिया, इतना इजी सेंटेंस, वो भी नो एरर सेंटेंस. ये तो बिल्कुल आइसिंग ऑन द केक हो गया. ओके, सो दिस इज द नो एरर सेंटेंस इन द स्पॉटिंग द एरर सेगमेंट. Now this sentence also, I suppose हमने कम से कम 15 to 20 examples इसी टॉपिक के ऊपर किए हैं. Remember we have done confusing nouns, we have done noun and number, singular and plural. उसमें मैंने confusing nouns में आपको ऐसे बहुत सारे examples कराए हैं. मैंने आपको practice sets में बहुत सारे examples कराए हैं. तो अब check out this, my friends. Now this S, that is apostrophe case. Apostrophe means मेरे फ्रेंड की या मेरे फ्रेंड का. जैसे मैंने आपको पहले जब हम ये टॉपिक कर रहे थे तब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, दिस इज माई डैड्स कार, ये मेरे डैड की कार है. दिस इज माई ब्रदर्स बंगलो, ये मेरे भाई का बंगलो है. तो whenever this apostrophe comma and apostrophe s is used with some noun, it becomes apostrophe case, that means possessive case. Possessive case means मालिकाना अधिकार, आपका उसके ऊपर अधिकार है, आपका उसके ऊपर ओनरशिप है, आपका उसके ऊपर पोजेशन है. क्लियर? तो my friends, मेरे फ्रेंड की, daughter in laws. अब see again a compound noun. compound noun हमने किया है, बहुत अच्छे से किया है. हमने एक डिफरेंट सेगमेंट कंपाउंड नाउन पे किया है, हमने एक डिफरेंट वीडियो कंपाउंड नाउन पे किया है. तो कंपाउंड नाउन कहाँ जा, दो नाउन मिलके कंपाउंड नाउन बना रहे हैं. ओके, डॉटर इन लॉज. अब देखो यहाँ पर माय फ्रेंड्स, ये एस लगा है, ये लगा है पोजेशन के लिए, यहाँ पर एस लगा है लॉ के बाद. जब भी कंपाउंड नाउन में वर्ड के खत्म होने के बाद अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है तो वो पोजेशन बता रहा है. अब मेरे फ्रेंड की डॉटर इन लॉ की have come, कुछ लॉजिक ही नहीं बन रहा है यार. मेरे फ्रेंड की, ओके, मेरे फ्रेंड के डॉटर इन लॉ के, क्योंकि लॉ में अगर एस लगा है तो ये तो एपोस्ट्रोफी लगा है, ये तो पोजीशन बता रहा है. अब यहाँ पर देखो आपको हिंट दिया है have, that means प्लूरल वर्ब. अब जब आपको प्लूरल वर्ब यहाँ दिया है और ये वर्ड तो रॉन्ग ही है, ये वर्ड रॉन्ग है, यहाँ पर प्लूरल के लिए हमको डॉटर्स इन लॉ, मेरे फ्रेंड की डॉटर्स इन लॉ आ गई हैं, मेरे फ्रेंड की बहुएं आ गई हैं. ओके, जब हम लॉ के बाद एस लगाते हैं, मैंने क्लियर आपको बार बार बताया था
जब भी हम लॉ वर्ड के बाद, जब कंपाउंड नाउन है डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ओके, जब भी हम डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, लॉ के बाद एस लगाएंगे तो वो एपोस्ट्रोफी केस बन जाएगा, वो पोजेसिव केस बन जाएगा। अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, हमें पोजेशन बताना है तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई ब्रदर इन लॉज कार, ये मेरे ब्रदर इन लॉ की कार है, क्लियर। और अगर मैं बोलूं दे आर माई ब्रदर्स इन लॉ, वो मेरे ब्रदर्स इन लॉ हैं या वो मेरे देवर हैं। तो जब भी हमें प्लूरल बनाना है तो हमें एस यहाँ लगाना है, हमें पोजेसिव केस बनाना है तो यहाँ लगाना है। अब दिस वर्ड इज रॉन्गली यूज्ड हियर, यहाँ पर डॉटर इन लॉ प्लूरल सेंस में यूज हो रहा है, तो यहाँ पर डॉटर्स इन लॉ होना चाहिए, ना कि डॉटर इन लॉज। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ सेंटेंस नंबर 18। यार अब ये सेंटेंस अगर आपने गलत किया है ना तो डेफिनेटली यू विल गेट वन फ्रॉम मी। मुझे लगता है 100 टाइम्स, मोर देन 100 टाइम्स हमने ये पढ़ा है। Whenever we are using prefer, prefer is always followed by to. Prefer is never followed by than. Prefer कभी भी than से follow होता ही नहीं है। मोर देन 100 टाइम्स हमने ये किया है, बार बार किया है, रटवाया था मैंने आपको कि प्रेफर के बाद टू ही आएगा, टू ही आएगा और वो टू ही आएगा। ओके, लेट्स टेक, आई प्रेफर सी फूड देन मेडिटेरेनियन फूड। मैंने आपको बताया था आई प्रेफर टी टू कॉफी, बोला था ये मेरी चॉइस, याद रख लेना, ये सेंटेंस ऐसे ही याद रख लेना। तो आई प्रेफर टी टू कॉफी, मुझे चाय कॉफी से ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पर देन नहीं चाहिए बच्चा, यहाँ पर टू चाहिए। इजी वन टू स्कोर। Now we were discussing about the issue. This sentence also we discussed in the practice papers. मैंने आपको जब सेंटेंस इंप्रूवमेंट या स्पॉटिंग द एरर्स की प्रैक्टिस कराए थे उसमें डेफिनेटली ये क्वेश्चन था, डेफिनेटली इस टाइप का सेंटेंस था। आई एम श्योरिंग यू कि ऐसा सेंटेंस था। तो वी वर डिस्कसिंग, डिस्कसिंग के बाद अबाउट नहीं आता, कभी भी नहीं आता। जब हम डिस्कस कर रहे हैं, हम इश्यू डिस्कस कर रहे हैं ना यार, वी वर डिस्कसिंग द इश्यू, हम इश्यू डिस्कस कर रहे हैं, इश्यू के बारे में डिस्कसिंग कर रहे हैं। डिस्कशन के बाद अबाउट यूज कर सकते हो, बट डिस्कसिंग अबाउट रॉन्ग। वी वर डिस्कसिंग द इश्यू, पढ़ने में ही इजी और क्लियर और सिंपल लग रहा है, हम उस सेंटेंस को एरेनियस करके कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इश्यू, हम उस इश्यू के बारे में डिस्कसिंग कर रहे थे। अरे यार इतनी भयानक इंग्लिश तो मत करो। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट नहीं होना चाहिए, दिस इज द एरेनियस पार्ट। द करेक्ट सेंटेंस इज वी वर डिस्कसिंग द इश्यू। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है और आप अपने आंसर की चेक करते जा रहे हो कि मैक्सिमम आंसर्स आर करेक्ट इन योर आंसर की। So students, check out the part C, antonyms. Antonyms means you have to find the opposite, and believe me, इससे easy words antonyms में आज तक आए ही नहीं है। This is the first time in the history of India exam कि इतने easy level के words antonyms में आए हैं। That's why I'm saying कि English exam a piece of cake for my students. चलो, check out the directions. You have to find the most opposite meaning word from the options in the given sentence. So let's check the first sentence, and the first sentence says he nodded absently throughout the meeting. What do you mean by nod karna? To nod means to just give the body gesture or facial gesture by saying yes or no. तो ये आपको पता ही है। He nodded absently throughout the meeting. पूरी मीटिंग में बस वो एब्सेंटली सिर हिलाता रहा, उसको समझ नहीं आ रहा था कुछ, जो मेंटली एब्सेंट था। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ एब्सेंटली। अब एब्सेंट है मतलब मेंटली एब्सेंट है, कुछ समझ नहीं आ रहा उसको, बस वो सिर हिलाया जा रहा है। नाउ सी, अब अगर आप इन वर्ड्स को देखेंगे easily in 1 second you can just find out the antonym. Now see, capably. Now what do you mean by capably? Capably means you are capable of, you are having that caliber. तो क्या एब्सेंटली कैपेबली का ऑपोजिट है? कहीं से नहीं है यार, दूर दूर से नहीं है, इसको बंद करो। अब ड्रीमली, ड्रीमली मतलब सपनों में, यार ये भी तो सपनों में ही खोया है, ये भी तो एब्सेंट है, ये भी तो मेंटली कहीं और खोया हुआ है। तो एब्सेंटली का एंटोनिम ड्रीमली तो कहीं से नहीं होगा। नाउ कम्स एजिटेटेडली। एजिटेटली मींस वायलेंटली,
गुस्से में, एंगर में, ओके, एजिटेटली एकदम गुस्से में, वायलेंटली। अब क्या एब्सेंटली का ऑपोजिट वायलेंटली होगा विद द फोर्स? नो, दिस इज रॉन्ग। इजी समझ में आ रहा है यार। अलर्टली, अलर्ट मींस पूरी तरह अवेयर है व्हाट्स गोइंग ऑन नियर बाय, तो वो मीटिंग में अलर्ट था, मींस मेंटली प्रेजेंट था, मेंटली एक्टिव था। तो एब्सेंट का एंटोनिम alertly. So B is the correct answer for question number 21. So let's check the next question. Now next question says, यार ये भी बहुत easy है. Check out that I fully believe that the cornerstone of good policy is an electorate that is educated on the national issues. Yeah, very correctly said, very rightly said. कि if someone या some committee is making a policy, तो जो उस policy को बना रहे हैं, that person must be educated on that issues. उनको जानकारी होनी चाहिए उस इश्यू की, तभी तो उस इश्यू को सॉल्व करने के लिए वो कुछ पॉलिसी बना पाएंगे. तो एजुकेटेड मीन्स लर्न, नॉलेजेबल, जिसको नॉलेज है, जिसको जानकारी है. ओके, नाउ एजुकेटेड जो नॉलेजेबल है, जिसको जानकारी है. अब आपको इसका करेक्ट एंटोनिम ढूंढना है. यहां कह रहे हैं जिसको जानकारी है. ओके, एजुकेटेड है मतलब वो लर्न है उस चीज में, उसको जानकारी है, उसको नॉलेज है. अब बेसिक सी बात बताओ यार, अगर एक चीज है जिसको जानकारी है, एक बंदा है जिसको जानकारी है, और जिसको जानकारी नहीं है उसको आप क्या करोगे? क्या कहोगे कि उसको जानकारी नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, उसको किसी के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है. ठीक है, अब यही ट्रिक, यही हिंट याद रखना बिफोर सॉल्विंग दिस. सी, सेरिब्रल, एनलाइटेंड, इग्नोरेंट, एरुडाइट. एरुडाइट मीन्स नॉलेजेबल. एरुडाइट का मीनिंग ही नॉलेजेबल होता है. तो अगर एजुकेटेड भी नॉलेजेबल, एरुडाइट भी नॉलेजेबल, तो यार ये तो सिनोनिम हो गए, ये सिनोनिम हो गए. इग्नोरेंट, एनलाइटेंड. एनलाइटेंड मींस अवेयर, जिसको नॉलेज है, जिसको जानकारी है, जो अवेयर है सब चीजों से. तो एजुकेटेड का जो सिनोनिम है वो एनलाइटेंड हो गया. नाउ चेक आउट दिस सेरिब्रल एंड इग्नोरेंट. सेरिब्रल मींस वायलेंट, तो ये तो रॉन्ग हो गया. नाउ सी इग्नोरेंट. इग्नोरेंट मींस वो उसको कोई भी चीज की जानकारी नहीं है, वो अनअवेयर है, वो इग्नोरेंट है. सो स्टूडेंट, जस्ट वन थिंग टू करेक्ट. सेरिब्रल का मीनिंग होता है, सॉरी, रिलेटेड टू सेरिब्रम, दैट मींस ब्रेन, रिलेटेड टू ब्रेन. तो अगर एजुकेटेड और सेरिब्रल क्या एंटोनिम होंगे? कहीं से भी नहीं. नाउ इग्नोरेंट, इग्नोरेंट यू ऑल नो मींस अनअवेयर. तो एजुकेटेड का करेक्ट एंटोनिम है ignorant. That is the thing. Okay, now come to the next question. For important medical decisions, even finding a doctor you trust is not enough. Okay, हमें एंटोनिम ढूंढना है important का. अब यार important का एंटोनिम, जो important है उसका एंटोनिम क्या हो सकता है? See, unimportant, easy thing, easy. एक और सिली. ओके, एक और हमने ये सारे वर्ड किए हैं. ट्राइबल, ट्राइबल, ट्राइबल इश्यू, दे आर फाइटिंग ओवर ट्राइबल इश्यू. वो एक छोटी सी नॉनसेंस की बात पे लड़ रहे हैं यार, वो एक अनइम्पॉर्टेंट बात पे लड़ रहे हैं ना. इम्पॉर्टेंट का क्या एंटोनिम सिग्निफिकेंट होगा? सिग्निफिकेंट मींस इंपॉर्टेंट, तो ये तो सिनोनिम हो गया. चलो ट्राइबल छोड़ो. बेसिक. इंपॉर्टेंट का ऑपोजिट बेसिक कभी भी नहीं होगा. बेसिक मींस प्राइमरी लेवल की एजुकेशन. इंपॉर्टेंट वो भी हो सकती है, बेसिक इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वो एंटोनिम तो नहीं होगा. ओके, प्रोबेबल, यू ऑल नो प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबल. तो क्या इंपॉर्टेंट का एंटोनिम प्रोबेबल? नेवर. आंसर इज ट्राइबल. और ये ट्राइबल मैंने आपको पहले भी कितनी बार, जब हमने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स किए थे, आई हैव गिवन यू मेनी वर्ड्स, मैंने तब भी बताया था कि लिख के रख लो कहीं भी, ये ट्राइबल वर्ड आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा. याद है आपको? आई गिव दिस ओपन चैलेंज टू यू ऑल कि ट्राइबल, फ्यूटाइल, ये सारे वर्ड जो मैंने आपको बताए थे कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे. सी, माय चैलेंज इज अकम्प्लिश्ड. मैंने जो बोला था वही हुआ. ओके, so let's check the next question. So answer is tribal. Now planets move in their orbits. आपको move का एंटोनिम देखना है. Now see, अगर आप एक सीरियस सा लॉजिक लो, अगर आपको मूव का ऑपोजिट नहीं पता, चलो माना हमको मूव का ऑपोजिट नहीं पता,
बट हम ऑप्शंस में से अगर देखेंगे बच्चा तो ऑपोजिट छोड़ के बाकी सारे वर्ड्स मूव को ही आगे कर रहे हैं, दैट मीन्स मूव से ही रिलेट कर रहे हैं, जो कि सिनोनिम्स हो जाएगा, और जो बचेगा वो ऑटोमेटिकली एंटोनिम है। सी पुश, क्या मूव का ऑपोजिट पुश होगा? मूव करना, आगे बढ़ना, पुश करना, आगे बढ़ना। आप किसी को पुश करते हो, धक्का मारते हो तो वो आगे बढ़ रहा है, तो ये तो एंटोनिम कभी भी नहीं होगा। रोटेट, अगेन रोटेट जब हो रहा है तो भी मूवमेंट तो हो रहा है ना यार, मूव हो रहा है दैट मीन्स मूवमेंट हो रहा है, रोटेट हो रहा है दैट मीन्स मूवमेंट हो रहा है। आई जस्ट फील जस्ट हैप्पी ऑन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन कि यार ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए। तो रोटेट भी रॉन्ग। अब स्टॉल और फ्लो, अब फ्लो भी अगर हो रहा है, फ्लो भी मूव तो हो रहा है, पानी का फ्लो है, वाटर फ्लो है, तो वो स्टेगनेंट तो नहीं है, वो स्टेबल तो नहीं है, फ्लो है मींस मूवमेंट हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑल दीज आर सिनोनिम्स ऑफ मूव। बचा क्या? स्टॉल। स्टॉल मींस स्टैंड, स्टैंड स्टिल हो जाना, स्टेबल हो जाना, स्टेगनेंट हो जाना, तो करेक्ट आंसर इज स्टॉल। तो दिस आंसर आई होप यू हैव डन इट करेक्ट। Now see the next question, students. Temperature is a measure of internal energy of an object and is frequently expressed by physicists in units of Kelvin. आपको express का opposite ढूंढना है। अब जो options में word हैं, मैंने आपको 100 times एक word कराया था concealed. Concealed means to hide. इसका मैंने आपको opposite या antonym कराया था revealed. Revealed means to show. अब बताइए, किया था 100 टाइम्स किया था, मोर देन 100 टाइम्स ही किया होगा यार, ये वर्ड्स तो आपको रट गए थे। I gave you the example of a cosmetic also for this word concealer. What do concealer does? Concealer just hides the blemishes. बताया था मैंने आपको। तो concealed करना छुपाना, revealed करना एक्सप्रेस करना बताना। ओके, अब यहाँ देखो एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, बता रहा है, रिवील कर रहा है, दिखा रहा है। इमोशंस एक्सप्रेस करना, इमोशंस रिवील करना, दिखाना, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, दिखाना। अब अगर ये हो गया टू शो, इजी, एक्सप्रेस करना टू शो, आपको इसका ऑपोजिट ढूंढना है, दैट मीन्स टू हाइड। दैट मीन्स टू हाइड, इतना अगर आपने ट्रिक आजमा ली तो आंसर आपके हाथ में है। सी, एक्सप्रेस करना टू शो, फाउंड करना मतलब मिल गया हमें। अगर ये टू शो है, इसका ऑपोजिट मीन्स छुपाना, क्लियर, तो फाउंड तो नहीं। अगेन टोल्ड, टोल्ड करना बताना, एक्सप्रेस करना बता दिया, टोल्ड करना बता दिया, तो ये भी नहीं। अब यार डिस्ट्रीब्यूटेड तो कहीं से भी नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या? बांट दिया, आप तो अपना बता रहे हो यार, बांट थोड़ी रहे हो, तो ये तो गलत हो गया। अब कंसील्ड ही बच रहा है। अब यार ये क्वेश्चन तो आपको एक सेकंड में आना चाहिए। कंसील करना टू हाइड, एक्सप्रेस करना टू शो। तो इफ, एज आई ऑलवेज से, इफ यू आर स्टडिंग लाइक दिस इन अ डिटेल्ड मैनर, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वर्ड किसी भी तरीके से आ जाए, नो नीड टू वरी। आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आपकी वोकैबुलरी में वर्ड्स का रूट वर्ड क्लियर है, तो फिर वो वर्ड्स चाहे ऑप्शन में आ रहा है, चाहे क्वेश्चन में आ रहा है, नो नीड टू वरी। आप हमेशा और हमेशा उस वर्ड को करेक्टली ही अटेम्प्ट करोगे। ओके, तो लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ना यार, इससे ये तो मतलब बहुत ज्यादा ही हो गया, ये तो डबल आइसिंग ऑन द केक हो गया। नाउ सी, पीपल आर्ग्यू अबाउट व्हाई वीनस इज सो मच वार्मर देन द अर्थ। वार्मर मींस गरम, गरम का ऑपोजिट ठंडा, ये तो हमें पता ही है। नाउ सी, वार्मर का ऑपोजिट फ्रेंडली कभी भी नहीं। कोल्डर, वाइल्डर, हेवियर, इजीली समझ में आ रहा है यार, कोल्डर होगा, आराम से कोल्डर होगा। तो अगर आपके सारे आंसर्स एज पर माय एनालिसिस करेक्ट जा रहे हैं ना, तो पार्टी तो बनती है। वी विल हैव अ ग्रैंड पार्टी। ओके, तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, scientists are concerned whether the oceans and land biosphere will take up as much carbon in the future as they presently do. अब concern word, मुझे लगता है कि हमने जो जो वर्ड्स किए हैं ना बच्चा, वो सारे वर्ड्स पे ही पेपर आ गया है। तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपने नहीं किया है। और ये वर्ड्स, वोकैब के वर्ड्स, तो मुझे लगता है सारे ही वर्ड्स आपकी कमांड में थे। एंटोनिम्स के जितने क्वेश्चंस मैंने अभी तक देखे हैं, सारे वर्ड्स आपकी कमांड में थे। कोई भी वर्ड ऐसा नहीं था जो आपने पहली बार सुना हो या पहली बार पढ़ा हो
या कोई भी वर्ड ऐसा नहीं था अभी तक जो आपने कम से कम 50 to 60 टाइम्स नहीं किया हो, चाहे प्रैक्टिस में, चाहे क्लास सेशंस में, चाहे आप अपने जो प्रैक्टिस सेट्स और पेपर सॉल्विंग कर रहे थे। ओके, लेट्स चेक द एंटोनिम ऑफ कंसर्न। कंसर्न होना, किसी के बारे में आप वरी हो, किसी के बारे में आप सोच रहे हो, किसी के बारे में आप ध्यान रख रहे हो। तो साइंटिस्ट आर कंसर्न whether the oceans and land biosphere will take up as much as carbon in the future as they presently do। तो साइंटिस्ट परेशान हैं, उनको उस चीज से वो सोच रहे हैं, उस चीज के बारे में परेशान हो रहे हैं, वरी कर रहे हैं। अब अगर आप किसी के लिए कंसर्न हो, दैट मीन्स यू आर सेंसिबल अबाउट दैट, दैट मीन्स आप उसके बारे में सोच रहे हो, आप सेंसिटिव हो, आप उसके बारे में ध्यान रखते हो। आप किसी के बारे में ध्यान नहीं रखते तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आपको कंसर्न्ड का ऑपोजिट ढूंढना है। जस्ट चेक आउट द ऑप्शंस यार। कंसर्न्ड का ऑपोजिट वरीड होगा, कंसर्न्ड का मीनिंग ही वरीड है, आपको ऑपोजिट ढूंढना है। इनडिफरेंट, क्यूरियस, पजल्ड। सी, अगर आपने ये ऑप्शन कट कर दिया, अब आपके जो 3 ऑप्शंस बचे हैं उनमें से इजीली समझ में आ रहा है कि ये 2 ऑप्शन तो ऑपोजिट में जाएंगे ही नहीं। सी, कंसर्न मतलब आप वरी कर रहे हो, जैसे मैंने ये बताया, वरी इज द सिनोनिम ऑफ कंसर्न। तो आप किसी के बारे में परेशान हो रहे हो तो क्या आप पजल्ड हो? पजल्ड हो, आप परेशान हो रहे हो, आप पजल्ड नहीं हो। और परेशान का ऑपोजिट पजल्ड तो कभी भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं। क्यूरियस हो, क्यूरियोसिटी है, आप ईगर हो कुछ जानने के लिए। आप परेशान हो रहे हो और आप ईगर हो कुछ जानने के लिए, तो क्या ये कहीं से ऑपोजिट है? नो। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मींस इनसेंसिटिव, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार, कुछ भी हो। तो क्या साइंटिस्ट जो ओशंस के बारे में परेशान हो रहे हैं, दैट मीन्स वो उसके बारे में वरी कर रहे हैं। और अगर आप वरी नहीं कर रहे हो तो आप इंडिफरेंट हो, आप इनसेंसिटिव हो, आप में संवेदना ही नहीं है, आप में फीलिंग्स ही नहीं है, आप किसी चीज को फील ही नहीं कर रहे हो। दैट मीन्स आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और अगर आप कंसर्न्ड हो तो आप वरीड हो, आप उसके बारे में सोच रहे हो, आपको फर्क पड़ता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज बी। नाउ चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज the biggest debate among scientists today is about cloud feedback। अब यार डिबेट का एंटोनिम ढूंढना है। We have debate competitions in our academy, और जो डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनको इसका आंसर तो आता है ही, बट जो नहीं भी कर चुके हैं, those who were in the audience, they also knew कि when the participant were in the debate competition, what they were doing, they were not having agreement on anything, they were arguing। वो आपस में बहस कर रहे थे। डिबेट करना मींस अगर आप डिबेट कर रहे हो तो आप डिसएग्री हो यार, आप सामने वाले से डिसएग्री हो। सी, डिबेट मतलब आप डिसएग्री हो, यू आर प्रेजेंटिंग योर पॉइंट, द अदर पर्सन इज प्रेजेंटिंग हिज पॉइंट, दैट मींस यू आर नॉट एग्रीइंग विद दैट पॉइंट। तो ये डिबेट चल रही है, डिबेट चल रही है, बहस चल रही है। आप न्यूज चैनल्स पे आजकल देख रहे हो यार, सुशांत सिंह राजपूत को लेके क्या डिबेट चल रही है। हर एक अपना ही लॉजिक लगाया जा रहा है, हर एक अपनी ही व्यू बताया जा रहा है, हर एक अपना ही ओपिनियन बताया जा रहा है। तो जब ये ओपिनियन बता रहे हो, सब अपने अपने ओपिनियन बता रहे हो, तो ये लोग बहस कर रहे हैं, ये लोग न्यूज चैनल पे डिबेट कर रहे हैं। नॉट अ सिंगल पर्सन इज एग्रीइंग विद द अदर पर्सन। तो डिबेट मतलब डिसएग्रीमेंट, डिबेट मतलब डिसएग्रीमेंट। अब आपको डिसएग्रीमेंट का ऑपोजिट ढूंढना है। क्लियर? कंटेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कंटेंट? कंटेंट का मतलब है सेटिस्फाइड। मुझे लगता है ये वर्ड भी हमने कम से कम 20 से 25 बार किया है। कंटेनमेंट, कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड होना, टोटली इनर सेटिस्फेक्शन। तो डिबेट का ऑपोजिट कंटेंट होगा, कहीं से नहीं होगा यार, इसको कट कर दो। मूड, मूड का अगेन मीनिंग है डिबेट या डिस्प्यूट या डिसएग्री। तो क्या मूड का कनेक्शन एज एन एंटोनिम डिबेट से जाएगा? नो, मूड इज द सिनोनिम ऑफ डिबेट, तो ये भी कट कर दो। नाउ रैंगल, अब जब हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे, प्रैक्टिस पेपर्स किए हैं हमने एनडीए के, एनडीए एग्जाम होने से पहले जब मैंने इंग्लिश के आपको 3 to 4 प्रैक्टिस पेपर्स कराए थे, आई टोल्ड यू रैंगल, रैंगलर, क्वारलसम, लड़ने वाला, उलझने वाला, कॉम्बेटिव, सब सिनोनिम ऑफ रैंगल। रैंगल मीन्स जो उलझ जाता है, जो लड़ाई करने के लिए रेडी रहता है, जो बहस करने के लिए रेडी रहता है। रैंगलर, वन हु इज अ क्वारलसम, कॉम्बेटिव, लड़ाकू, झगड़ालू, हमेशा यार बहस करने के लिए रेडी है। तो डिबेट का रैंगल ऑपोजिट कहीं से नहीं हो रहा।
एक ही ऑप्शन बच रहा है बच्चा, दैट इज एग्रीमेंट, क्योंकि डिबेट मतलब अगर डिसएग्रीमेंट है उसका एंटोनिम तो एग्रीमेंट ही होगा, तो आंसर इज एग्रीमेंट। Now, the Earth's climate sensitivity is conventionally defined as the equilibrium temperature increase caused by a doubling of carbon dioxide. Okay. Again, जो हमने अभी वर्ड किया था उससे मिलता जुलता वर्ड है कंसर्न से। कंसर्न का ऑपोजिट हमने किया था इनडिफरेंट। यहाँ पे सेंसिटिविटी दी है। सेंसिटिविटी मतलब संवेदना, मतलब फीलिंग। आपके में आप उस चीज को फील कर पा रहे हो। सेंसिटिविटी मीन्स आप उसको फील कर पा रहे हो। ओके, तो अर्थ क्लाइमेट सेंसिटिविटी, इसका हमें सेंसिटिविटी का ऑपोजिट चूज करना है। नाउ विलिंगनेस, रिस्पॉन्सिवनेस और क्लोजनेस, ये सारे वर्ड्स देखो। सेंसिटिविटी है, सेंसिटिव हो तो क्या उसका ऑपोजिट क्लोज होगा? कभी भी नहीं होगा। रिस्पॉन्स, आप रिस्पॉन्स कर रहे हो किसी चीज को, अगर आप किसी चीज से सेंसिटिव हो तो आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो क्या सेंसिटिविटी का ऑपोजिट रिस्पॉन्सिवनेस? नेवर, नेवर। नाउ विलिंगनेस, अब विलिंगनेस तो यार कहीं से भी नहीं हो रहा, तो विलिंगनेस को भी कट कर दो। इम्परवियसनेस का मतलब होता है हार्ड टू पेनिट्रेट और हार्ड टू अफेक्ट, दैट मीन्स इनसेंसिटिव। और ये वर्ड इम्परवियस भी मैंने आपको सिनोनिम्स में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में 100% प्रैक्टिस सेशन में कराया है, 100% कराया है। इम्परवियस मीन्स इनसेंसिटिव या हार्ड टू अफेक्ट, हार्ड टू पेनिट्रेट। आप जिसको अफेक्ट ही नहीं कर सकते, बिल्कुल उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो इतना हार्ड है, तो आंसर इज imperviousness. Okay, so I hope these questions are clear to you all. So students, last question in section C, that is antonym section. और ये वर्ड तो शायद मुझे लगता है कि हमने इसके इतने सिनोनिम्स कर लिए हैं कि अब आप ह्यूज वर्ड तो यूज ही नहीं करोगे, आप ह्यूज वर्ड के मैमोथ यूज करोगे। दैट मीन्स यू विल यूज न्यू वर्ड्स फॉर ह्यूज। बट लेट्स चेक द क्वेश्चन। द ओशंस कैरी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू द हाई लैटिट्यूड्स। यू हैव टू फाइंड द एंटोनिम ऑफ ह्यूज। हमने ह्यूज का सिनोनिम किया है मैमोथ, किया है हमने। मैमोथ मीन्स ह्यूज, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ओके, नाउ ह्यूज का आपको सिनोनिम पता है, आपको इसका ऑपोजिट ढूंढना है। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। वास्ट, बहुत बड़ा। ओके, अब सी, ह्यूज का ऑपोजिट सिग्निफिकेंट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा यार। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, ह्यूज मतलब बड़ा, बेसिक, तो ये तो नहीं होगा। नाउ मेजर, मेजर पार्ट एंड माइनर पार्ट। मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा, तो क्या ह्यूज का एंटोनिम मेजर कहीं से भी मैच होगा? नेवर। ना टाइनी और डोरमेंट, दो बचे हैं। डोरमेंट वॉल्केनो आपको पता है, आपने 9th 10th में वॉल्केनोज में जरूर पढ़ा होगा। डोरमेंट मतलब स्लीपिंग, इनएक्टिव। वॉल्केनो पढ़ा है बेटा? डोरमेंट वॉल्केनो, दैट मींस इनएक्टिव वॉल्केनो, स्लीपिंग वॉल्केनो। अब आप ही बताइए मुझे, ह्यूज का ऑपोजिट डोरमेंट होगा? ह्यूज मतलब बड़ा, डोरमेंट मतलब सो रहा है। यार सो रहा है, उसको डिस्टर्ब मत करो, बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो। वी विल चेक कि ह्यूज का सिनोनिम अगर मैमोथ है तो ह्यूज का ऑपोजिट क्या होगा? टाइनी। टाइनी मतलब छोटा सा, बिल्कुल मामूली सा, बिल्कुल स्मॉल सा। अब यार टाइनी वर्ड तो समझ में आ रहा है, ह्यूज मतलब बड़ा, टाइनी मतलब छोटा, इससे इजी क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट करोगे? तो वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 3 सेक्शंस ऑफ आवर इंग्लिश पेपर 2020, और मुझे नहीं लगता इससे डिटेल एनालिसिस ऑफ इंग्लिश पेपर, एनडीए इंग्लिश पेपर 2020 अभी तक आपने कहीं भी देखा है। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है, प्लीज प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। So my dear friends, my dear students, now I'm going to start part D of NDA exam 2020, and part D, as you can see, is
ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, और इस बार ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इतने इजी आए हैं कि आप कर सकते हो। और एक और चीज यार, इजी डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, अगर यू नो द टेक्निक ना तो एवरी क्वेश्चन इज इजी फॉर यू, एंड इफ यू डू नॉट नो द टेक्निक, easy question is also very difficult for you. So if you are studying here, that means if your concepts are clear na, if you have a detailed knowledge of your subject, no question is difficult for you. So okay, let's start part D, ordering of words in a sentence. Now these are the instructions, और आपको instructions पता ही है, आपको you will be given a sequence of sentence and you have to transform it into a meaningful sequence, and they are known as PQRS question. The 4 options will be given and you have to check out the sequence as per the grammatical thing, और उसके according आपको sequence लगाना है. Okay, so let's check. Okay, several years ago, course on climate change at Texas A&M University, Professor Andrew Dessler created an introductory for freshmen and sophomores. अब आपने एक बार पढ़ लिया इसको, सेकेंड टाइम जब आप पढ़ोगे, जैसे मैंने आपको PQRS क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बताया है, देयर आर 2 to 3 टेक्निक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब पढ़ रहे हो आप ये देखिए कि सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा नाउन से स्टार्ट होगा, बिकॉज सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से. सब्जेक्ट के लिए या तो नाउन यूज होगा या प्रोनाउन यूज होगा. ओके, नाउन के बाद या वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब होगा. तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस, दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी आ सकता है, बट यहाँ स्टार्टिंग में सब्जेक्ट ही आएगा, और सब्जेक्ट में या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा. ओके, अगेन ऑब्जेक्ट में भी या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा. ये बेसिक टेक्निक्स आपको बहुत अच्छे से पता है. बट अगर मैं इस क्वेश्चन को देख रही हूँ, एक हिंट मुझे मिल रही है. सी, यहाँ पर लिखा है इंट्रोडक्टरी, कुछ इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने. अब अगर इंट्रोडक्टरी यहाँ खत्म हो रहा है तो इसके बाद वाले पार्ट में इसका कुछ पार्ट जरूर होगा. ओके, इंट्रोडक्टरी फॉर, इंट्रोडक्टरी कोर्स या इंट्रोडक्टरी सेवरल इयर्स अगो. बताओ यार, इंट्रोडक्टरी सेवरल इयर्स अगो या इंट्रोडक्टरी कोर्स? इंट्रोडक्टरी के बाद कोर्स. ओके, दैट मीन्स एक चीज मुझे समझ में आ गई है कि आर के बाद मुझे क्यू तो 100% चाहिए, तभी वो सेंटेंस कंप्लीट होगा. इसके पहले का और इसके बाद का हम बाद में देखेंगे, पहले ये ट्रिक समझ लो. आर के बाद मुझे क्यू चाहिए, इंट्रोडक्टरी कोर्स, ये मुझे कुछ मिलता जुलता लग रहा है. लेट्स वर्क ऑन दिस थ्योरी ओनली. आर के बाद क्यू कहाँ कहाँ है? सी, आर के बाद पी है, आर के बाद एस है, आर के बाद पी है, यहाँ पर आर के बाद क्यू है. अब अगर हम इसी सीक्वेंस को यहाँ देखें, पी आर क्यू एस सी, several years ago, okay, this is number 1. R, Professor Andrew Dessler created an introductory course on climate change at Texas A&M University for freshmen and sophomores. आ गया ये. एक और ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, जैसा मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. अब several years ago जब हम टाइम मेंशन कर रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में उसका टाइम बता दिया. इसके बाद देखिए, प्रोफेसर एंड्रयू डेसलर, दिस इज नाउन, नाम है किसी का, नाउन है, सब्जेक्ट की जगह यूज होगा स्टार्टिंग में. ओके, प्रोफेसर एंड्रयू डेसलर क्रिएटेड, दिस इज वर्ब. आ गया ये वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बच्चा, कैसे भी कंफ्यूज कर लें, आप आंसर ले ही आओगे. तो आंसर इज PRQS. मैंने आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक और ट्रिक बताई है कि whenever you feel, whenever you see the sentence, कि अगर कोई भी सेंटेंस for से स्टार्ट नहीं होगा, कोई भी सेंटेंस मॉडल से स्टार्ट नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा, तो अगर ऐसे कुछ सीक्वेंस में सेंटेंस हैं तो उनसे तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा ही नहीं. तो अगर वो ऑप्शन में बिगिनिंग में है तो उसको तो आप एलिमिनेट ही कर दो, ताकि आपका आधा काम हो जाए. इफ यू आर एलिमिनेटिंग 2 रॉन्ग ऑप्शंस, तो बाकी के 2 ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन चूज करना, इट इज इजी. ओके, सो दिस ट्रिक आल्सो वर्क्स. एंड समटाइम्स व्हेन यू गेट, अगर आपको स्टार्टिंग या बिगिनिंग का सीक्वेंस मिल जाता है,
अगर आप ये देखो कि मुझे ये पता है मेरा सेंटेंस पी से बिगिन होना है, फिर आप देखो कि पी से बिगिन होने वाले कितने ऑप्शंस हैं, तो आप उस थ्योरी को वर्क करो, बाकी के 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा. ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट आई मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. I realized that solving the climate change problem than solving will be much harder the ozone depletion problem. अब एक चीज आपने नोटिस किया, यहाँ पर एक वर्ड दिया है harder. Harder means यहाँ पर comparative degree use है. Comparative degree is used here. अब before moving forward to this question, I just want to recall the question which we did in the spotting the errors. हमने वहां पर एक क्वेश्चन किया था, the price of my dress is higher than that of yours. अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, आपके क्वेश्चन पेपर में है ये क्वेश्चन. वहां पर आपने देखा ये क्वेश्चन डिग्री का है, कंपैरेटिव डिग्री का है. अगर आप वहां देखिए सेंटेंस में हायर देन लिखा है, वहां पर मैंने आपको ये नो एरर सेंटेंस बताया है. अब वहां पर हायर देन, हायर के बाद क्या लगा, देन, बिकॉज कंपैरेटिव डिग्री में whenever we are using second form of adjective in comparative degree we have to use than. Okay, अब यहाँ पर harder लिखा है, that means harder के बाद मुझे than चाहिए, तो क्या कहीं मुझे than दिख रहा है, ये than. Okay, harder के बाद than आ गया, that means मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि मुझे अपने सीक्वेंस में आर के बाद क्यू चाहिए. बाकी थ्योरी पे बाद में वर्क करेंगे, पहले मुझे ये पता है मुझे आर के बाद क्यू चाहिए, इसके पहले क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, वो वी विल वर्क आउट लेटर. बट एट प्रेजेंट आई नो द ट्रिक कि मुझे आर के बाद क्यू चाहिए. अब आप चेक कर लो क्वेश्चंस के ऑप्शन में आर के बाद क्यू कितने ऑप्शंस में दिया है. आर के बाद क्यू है नहीं, आर के बाद क्यू है नहीं, आर के बाद क्यू है नहीं, आर के बाद क्यू एक ही ऑप्शन में है. दैट मीन्स यू आर डन विद द राइट आंसर. आर क्यू एक ही ऑप्शन में है एंड दैट इज PRQS. अब इसको क्रॉस चेक करते हैं. हम सिर्फ अपनी थ्योरी पे वर्क नहीं कर रहे बेटा, हम उसको क्रॉस चेक भी कर रहे हैं. सी PRQS. So let's check out the PRQS sequence, students. I realize that solving the climate change problem will be much harder than solving the ozone depletion problem, and by this cross checking we conclude that option A is the correct answer. तो I hope आपके सारे answers correct जा रहे होंगे. तो I, your English expert, your English educator Neetu ma'am, always supports you कि whatever the problem is, कि no matter whatever the problem is, just study hard, just work hard, and if you are having any of the problem, just feel free to contact me, feel free to message me if you are having any of the problem in the NDA English. Okay, so let's check the next question. Okay, although the temperature of this layer of the, when directly comparing the satellite, measurements of temperature, atmosphere should generally track the surface temperature, we must be careful. अब ट्रिक वही है बेटा, चेक करो. अब if we are checking out this sentence is beginning with although. We have done the complex sentence, simple complex compound. वहां पर I have taught you कि you can start या you can begin the sentence with although and though. though और although आप sentence को begin करने के लिए यूज कर सकते हो. तो अगर मैं इसको 1 लेती हूँ, see I have taken as at 1. अब यहाँ पर layer of the is the definite article जो किसी noun के पहले लगेगा. That means इसके बाद मुझे कोई noun चाहिए. अब क्या ये noun है? नहीं. क्या ये noun है? क्या ये noun है? That means ये दोनों में से एक हो सकता है but when नहीं हो सकता. So I got one trick कि मुझे P के बाद Q तो नहीं चाहिए. P के बाद Q नहीं चाहिए. Check out this, P के बाद Q है यहाँ पर. तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल रॉन्ग एलिमिनेशंस कर दो यार, रॉन्ग ऑप्शंस को हटा ही दो, आपकी मेहनत कम हो जाएगी. P के बाद Q नहीं चाहिए. अब अगर मैं इसी को ही P मान रही हूँ, क्लियर, फर्स्ट मान रही हूँ, तो द, although the temperature of this layer of the, measurements of temperature या atmosphere,
टेम्परेचर किसका होगा, मेजरमेंट का होगा या एटमॉस्फेयर का होगा? ऑफ कोर्स एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर की बात हो रही है, तो P के बाद S चाहिए, P के बाद S चाहिए, P के बाद S कहीं है, यहां पर है, P के बाद S है। अब हम इसी थ्योरी पे वर्क करते हैं। PS हमें मिल गया है QR, PS QR। चेक आउट द सीक्वेंस, आप खुद पढ़ो। सी, although the temperature of this layer of the atmosphere should generally track the surface temperature, we must be careful when directly comparing the satellite measurements of temperature, and by this is the correct answer। समझ में आ रहा है बच्चा? जो हम एनालाइजेशन कर रहे हैं, जो भी मैं पेपर पे आपको डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ या मैं आपको सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, यू मस्ट एग्री कि ये जो भी एनालिसिस है दे आर बेस्ड ऑन द लॉजिक। सिर्फ तुक्का नहीं मारना है, लॉजिक लगाना है, अपने रूल्स अप्लाई करने हैं, एंड दैट इज द थिंग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए कि उस टाइम पे आपको वो ट्रिक याद आए, वो लॉजिक याद आए, जिससे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलिमेंट हीट्स अप, eventually reaching high temperatures, glowing like a dark orange that radiates the visible range. Okay, अब आप देखिए, the element heats up, eventually reaching high temperature। ये इसमें मुझे कुछ रिलेशन लग रहा है कि जैसे ही कुछ ऊपर जाएगा वो गर्म हो जाएगा। Eventually reaching high temperatures, the element heats up, या the elements heats up, eventually reaching high temperature। Okay, अगर मैं इसको 1 मानती हूँ और इसको 2, the element heats up, एक एलिमेंट गर्म हो जाएगा जब वो ऊपर जाएगा, eventually reaching high temperature। अगर मैं ये ऑप्शन देख रही हूँ जो P और Q से स्टार्ट हो रहा है, glowing like a dark orange that radiates the visible range, तो अगर मैं ऐसा करूँ, the element heats up, eventually reaching high temperature, the visible range glowing like a dark orange that radiates। तो PQSR, अगर आप QPSR पे भी गौर कर रहे हैं, QPS, ये दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, QPSR को देखिए, QPSR, eventually reaching high temperatures, the element heats up, the visible range glowing that radiates। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, तो लेट्स चेक इस कंफ्यूजन को दूर कैसे करेंगे। Now see students, अगर आपको इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, सी, अगर हम P से स्टार्ट कर रहे हैं, द एलिमेंट हीट्स अप, सब्जेक्ट वर्ब, अगर हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं, इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर्स, आपको एक फ्रेज दे दिया है, लेकिन एज पर द ग्रामर रूल द सेंटेंस विल बिगिन विद P, सो आंसर इज PQSR। ओके, आई होप आपने ये करेक्ट ही किया होगा। लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, two people argue about why Venus is so much warmer to the sun, it absorbs more solar energy. The second argues that it's because Venus has a thick greenhouse gas rich atmosphere than the Earth. The first argues that it's because Venus is closer. अब आपको इसमें ना इजी 2 हिंट मिल रहे हैं यार। एडजेक्टिव पे इतने सारे क्वेश्चंस I was not expecting। हमने अभी किया harder than, उससे पहले हमने किया हायर देन, अब यहाँ पर क्या है बच्चा, वार्मर देन। सी, यहाँ पर आपको दिया है वार्मर, दैट मीन्स कंपैरेटिव डिग्री। अगेन मतलब कंपैरेटिव डिग्री इस बार पेपर सेटर को इतना पसंद आ गया है कि उन्होंने 3 क्वेश्चन सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री पर ही दे दिए हैं। सो लेट्स सी, वार्मर के बाद हमें क्या चाहिए, वार्मर के बाद हमें दैन चाहिए, तो क्या कोई ऑप्शन दैन से स्टार्ट हो रहा है? ये देखिए, ये दैन आ गया, दैट मीन्स मेरी एक थ्योरी बन गई है। मुझे P के बाद S चाहिए, सी, P के बाद मुझे S चाहिए, बिकॉज एज पर द डिग्री रूल वार्मर देन, वार्मर मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड बाय देन, तो वार्मर के बाद देन आ गया। अब आप देखो कि P और S किस ऑप्शन में साथ हैं, क्या यहाँ साथ हैं PS, ओके, क्या यहाँ साथ है, यहाँ साथ है, नहीं, तो इन 2 ऑप्शंस को तो हटा दो, 2 ऑप्शंस बच रहे हैं। अब आप सेकंड ट्रिक देखो, अब यहाँ पर दिया है टू पीपल आर्ग्यू अबाउट व्हाई वीनस इज सो मच वार्मर टू द सन, इट एब्जॉर्ब्स मोर सोलर एनर्जी द सेकंड, दैट मीन्स ये सेकंड दिया है, ये अब फर्स्ट पे तो आएगा नहीं, 2 से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा,
टू से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। और यहाँ पे आपको हिंट दिए यार, द सेकेंड, मतलब पहले वाले ने कुछ बोल दिया है तभी तो ये सेकेंड बोल रहा है। द फर्स्ट और सेकेंड, आपने ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स किया है। ओके, तो ऑर्डिनल्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सेकेंड पहले नहीं आएगा, फर्स्ट पहले आएगा बच्चा। तो सेकेंड से पहले क्या चाहिए? फर्स्ट। तो दैट मीन्स ये फर्स्ट नंबर पे तो आएगा नहीं। क्यों फर्स्ट नंबर पे नहीं आएगा? यहाँ क्यों फर्स्ट नंबर पे है? नो मैटर पीएस यहाँ साथ है, बट क्यों फर्स्ट नंबर पे हमें चलता ही नहीं ना, तो इसको रॉन्ग कर दो। अब बचा हमारे पास एक ही ऑप्शन, सी माई हैप्पीनेस, मतलब मुझसे मेरी खुशी कंट्रोल ही नहीं हो रही है यार। मतलब इतने आप इजी क्वेश्चन अब कर पा रहे हो, और ये इसलिए कर पा रहे हो बच्चा क्योंकि हमने ये लॉजिक वाइज सारे क्वेश्चंस किए हैं। दैट इज व्हाई आई एम हैप्पी, that is why I am sure, that is why I am confident कि my students they must have done this question correctly. Now check out this PS QR. अब इस सीक्वेंस को रख कर देखो, P S Q R। अब जरा पढ़ के देखते हैं इसको। Check out this. Two people argue about why Venus is so much harder than the Earth. The first argues, that means देखिए ये first है, इसके बाद second आएगा। The first argues that it's because Venus is closer to the sun, so it absorbs more energy. The second argues that it's because Venus has a thick greenhouse rich atmosphere. The correct option is PSQR. अब यार इतने टेक्निक बता दिए हैं कि ये क्वेश्चन तो मिनटों में बिल्कुल सॉल्व हो जाते हैं यार। ओके, so let's check the next question. So students, check out the next question. Are now used by more than 1,000 firms and are growing in popularity in United States and Europe. Gain sharing plans. C. अब जो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि कभी भी सेंटेंस स्टार्ट होगा वो नाउन से होगा, सब्जेक्ट से होगा, हेल्पिंग वर्ब से नहीं होगा, मोरल से नहीं होगा। नाउ सी, यहाँ पर आर दिया है और यहाँ पर एंड दिया है, तो एंड कंजंक्शन से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। अगर एंड दिया है तो इससे पहले कुछ चाहिए ना यार। एंड दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, दो पार्ट्स को जोड़ रहा है, तो एंड से नहीं होगा, क्यू से नहीं होगा और पी से नहीं होगा। नाउ अप्लाई दिस लॉजिक इन द ऑप्शंस। पी और क्यू से अगर कुछ ऑप्शंस हैं तो उसको तो एलिमिनेट कर दो। पी से इसको कर दो, क्यू से इसको कर दो, पी से अगेन इसको कर दो। अब कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है क्योंकि आंसर आपके सामने आ गया है। I told you this trick will be applied every time. मैंने आपको बताया था ये लॉजिक लगाओगे तो आंसर इजी हो जाएगा। सी, अगर आप हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते, ये आर है, इससे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए, इससे पहले आपको नाउन चाहिए, तो ये तो आर से सेंटेंस कभी स्टार्ट होगा नहीं, एंड से सेंटेंस कभी स्टार्ट होगा नहीं। तो अगर आपने मेरे लेक्चर्स कंटिन्यूसली फॉलो किए हैं तो ये सेंटेंस सॉल्व करना आपके लिए कोई भी मुश्किल की बात नहीं है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज SPRQ। अब सी, SPRQ। बच्चा व्हाई आई एम राइटिंग दिस 1 2 3 4, क्योंकि जब आपने मेरे लेक्चर्स अटेंड किए मैंने इसी तरीके से पढ़ाया है, बिल्कुल इजी लेवल से पढ़ाया है, इजी तरीके से पढ़ाया है। अगर आप डिफिकल्ट चीज करना चाहते हो तो पहले इजी लेवल से बेसिक स्टेप्स कर लो, डिफिकल्ट चीज अपने आप इजी हो जाएगी। दैट इज व्हाई तो मेरे स्टूडेंट्स को पेपर इजी लग रहा है क्योंकि हमने यही टेक्निक फॉलो की है इन आवर लेक्चर्स, इन माय वीडियोस। ओके, तो लेट्स चेक आउट लेट्स क्रॉस चेक द सीक्वेंस। गेन शेयरिंग प्लान्स आर now used by more than 1,000 firms in United States and Europe and are growing in popularity. तो अगर हमारे ये लॉजिक से SPRQ is the correct answer. Okay, now the next question. Now adversity without succumbing to the clouds of doubt and jealousy between friends, which is to both prosperity and the essay of friendship by Francis Bacon, celebrated the intimacy. अब जो हमने लॉजिक अभी लगाया मैं वही बता रही हूँ, कुछ भी मत सोचो, बस एक चीज देखो, क्या हम सेंटेंस टू से स्टार्ट कर सकते हैं? नो। क्या हम सेंटेंस बिटवीन से स्टार्ट कर सकते हैं? अब देखो बिटवीन दिया है, बिटवीन दिया है, दैट मीन्स दो यूनिट्स, दो सब्जेक्ट्स के बीच में ही बिटवीन यूज होता है, आपको पता है। अमंग यूज होता है दो से ज्यादा, बिटवीन यूज होता है दो के बीच में। एक तो यहाँ दे दिया फ्रेंड्स, मतलब दूसरा कोई है, बिटवीन फ्रेंड्स which is to both। अब अगेन बोथ भी दिया है, बोथ मतलब अगेन दो चीजों के लिए, बोथ, prosperity and, that means इसके बाद हमें कुछ चाहिए,
इसके बाद हमें चाहिए टू से हम सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते, क्यू वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो। नाउ सी, क्यू वाला ऑप्शन ये है, इसको तो हटा ही दो। ओके, अब आप देखो प्रॉस्पेरिटी एंड, प्रॉस्पेरिटी और एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी और एडवर्सिटी ऑपोजिट वर्ड्स, एंटीथेसिस। ओके, तो प्रॉस्पेरिटी और एडवर्सिटी, दैट मींस मुझे आर और पी एक साथ चाहिए, आर और पी एक साथ चाहिए। अब आप देखिए, अगर आर और पी ऑप्शन में एक साथ देख रही हूं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ इसमें है। अब अगर मैं ये ऑप्शन को रैंडमली नहीं ले रही हूं, मैं इसको क्रॉस चेक करती हूँ कि वेदर मेरी जो थ्योरी है वो राइट आंसर में वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो लेट्स चेक एस आर पी क्यू, हम वैसे ही नंबरिंग करके करते हैं, सी एस आर पी क्यू। क्लियर? अब देखिए आप, द एसे ऑफ फ्रेंडशिप बाय फ्रांसिस बेकन celebrated the intimacy between friends which is to both prosperity and adversity without succumbing to the clouds of doubt and jealousy, and by this we conclude our theory was right. That means SRPQ is the correct answer for question number 37. Now approximately हम लोग 75% of our paper we have done, and I hope आपको पूरा एनालिसिस समझ में आ रहा है, जो मैं पूरा डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। और बच्चा ये सिर्फ पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, दैट इज नॉट इनफ कि हम पेपर एनालिसिस में ही इतना डिटेल समझा रहे हैं। Whenever I just take my class, I always explain the topic in detail to my students. Until and unless my students are not satisfied ना, I just carry on explaining. जब तक स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है, नो बेनिफिट ऑफ माई एक्सप्लेनेशन। अगर स्टूडेंट सेटिस्फाइड है, दैट मीन्स वी हैव अचीव द लेवल। तो स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन इज आवर प्रायोरिटी, दैट इज व्हाई वी आर हियर फॉर यू ऑल। ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now students, check out the next question, question number 38. Friends without which the world is. Make friends and a person wills to want true. It is miserable solitude that compels a person to nothing other than a place of wilderness. Okay, अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। See, make V1 दिया है, मेक से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। हमें सेंटेंस को बिगिन करने के लिए सब्जेक्ट के लिए नाउन या प्रोनाउन चाहिए, V1 या वर्ब फॉर्म नहीं। तो क्यू से तो हमारा सीक्वेंस बिगिन नहीं होगा, क्यू से कोई ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, इसको एलिमिनेट कर दो, क्यू वाला ऑप्शन गया। नाउ इट इज मिजरेबल सॉलिट्यूड दैट कंपेल्स अ पर्सन टू, या अगर हम इसको देखें वांट ट्रू, क्या चाहिए एक इंसान को? टू मेक फ्रेंड्स एंड अ पर्सन विल्स टू। मैंने एक थ्योरी आपको बता दी कि क्यू से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर मैं क्यू ऑप्शन को देख रही हूं, पढ़ो उसको, मेक फ्रेंड्स एंड अ पर्सन विल्स टू, पर्सन चाहता है, विलिंग मतलब चाहना, उसको वो चीज चाहिए। अ पर्सन विल्स टू वांट ट्रू, क्या ट्रू चाहिए यार? ट्रू क्वालिटी बताई है। जब भी एडजेक्टिव यूज होता है, एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन की डिटेलिंग देता है, किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। तो ट्रू क्या चाहिए उसको? ट्रू के बाद इट तो नहीं आएगा, ट्रू के बाद नथिंग तो नहीं आएगा, ट्रू के बाद फ्रेंड्स आ सकता है, ट्रू फ्रेंड्स विदाउट विच। तो नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं, और एडजेक्टिव नाउन से पहले लगेंगे। तो यहाँ ट्रू के बाद मुझे फ्रेंड्स चाहिए, मुझे एक सीक्वेंस मिल गया, मुझे क्यू के बाद पी चाहिए, बट क्यू से सेंटेंस स्टार्ट नहीं चाहिए। दो मुझे ट्रिक मिल गई है। अब क्यू के बाद पी कहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है नहीं, यहाँ आ रहा है नहीं, सिर्फ यहाँ आ रहा है। और सेंटेंस में देखो क्यू से सेंटेंस बिगिन भी नहीं हो रहा है, आर क्यू पी एस। लेकिन रुको, इसको पहले क्रॉस चेक तो कर लें। आर क्यू पी एस, सी आर क्यू पी एस। क्लियर? अब पढ़ो उसको। इट इज मिजरेबल सॉलिट्यूड दैट कंपेल्स, कंपेल करना, उसको कंपल्शन लगाना। ओके, कंपेल्स अ पर्सन टू मेक। अब देखो एक और ट्रिक, टू मेक, ये V1 मैंने आपको बताया था, 2 प्लस V1 इज अगेन अ स्ट्रक्चर। तो 2 के बाद V1 चाहिए,
2 के बाद V1 सिर्फ यहाँ है और कहीं भी नहीं है. The same thing which I repeat again and again. If your concepts are clear ना, तो एक भी थ्योरी लगाओगे, एक भी लॉजिक लगाओगे and your question is done. You are there with the correct answer. अब अगर 2 plus V1 लगाओ या adjective plus noun लगाओ, आपके सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो किसी भी तरीके से बेटा, किसी भी तरीके से चेक करोगे आंसर करेक्ट ही आएगा. ओके, नाउ 2 के बाद V1 आ गया. इट इज अ मिजरेबल सॉलिट्यूड दैट कंपेल्स अ पर्सन टू मेक फ्रेंड्स एंड अ पर्सन विल्स टू वांट ट्रू फ्रेंड्स विदाउट व्हिच द वर्ल्ड इज नथिंग other than a place of wilderness. So C is the correct answer. Okay, now check the next question. Okay, takes the longest that never started the job to finish. अब easy thing, आप basic logic लगाओ. 2 plus V1, 2 से sentence start नहीं होगा. Work takes the longest, क्या takes verb से sentence start होगा? नहीं. That means P और S से तो हमारे sentence start होंगे ही नहीं. P से नहीं होगा और S से नहीं होगा. अब 2 ऑप्शन बचते हैं, इसमें भी P से नहीं होगा. हमारे पास एक सिंगल ऑप्शन बचा है R से. फिर भी हम ऐसे ही नहीं जाएंगे आंसर पर, क्रॉस चेक तो कर ले यार कि जो हम थ्योरी लगा रहे हैं वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है. RQPS, RQPS. Check out this. The job that never started takes the longest to finish. And by this we conclude कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है RQPS. क्लियर? अब जैसे मैंने आपको बताया सेंटेंस हमेशा नाउन से स्टार्ट होता है. ये अगर नाउन है, डेफिनेट आर्टिकल नाउन से पहले लगा है. द जॉब, द जॉब सी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट की जगह पर या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा. सी द जॉब टेक्स, ये वर्ब आ गया यहाँ पर. तो एक भी अगर आपने थ्योरी अप्लाई कर दी ना तो यू आर हैविंग द करेक्ट आंसर. तो वी हैव कंप्लीटेड द सेक्शन डी आल्सो. मूविंग टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर पेपर, ऑफ आवर इंडियन इंग्लिश पेपर 2020, एंड दैट इज आई सपोज सिनोनिम्स. हमारे एंटोनिम्स हो गए, हमारे स्पॉटिंग द एरर्स हो गए, हमारे ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस हो गए. दैट मीन्स हमारा मेन जो टॉपिक्स थे वो खत्म हो गए हैं. इडियम्स एंड फ्रेजेस और कॉम्प्रिहेंशन दिस ईयर आया ही नहीं है. तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज सिनोनिम टॉपिक. एंड आई सपोज अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन को एनालाइज किया है, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट आए. बिकॉज एज आई ऑलवेज से, नो नीड टू फियर व्हेन नीतू मैम इज हियर. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द सेक्शन ई. See, ordering of words in a sentence का last question को देखते हैं हम. And what does the last question says? To what you can create, control shift your energy instead of worrying about what you cannot. अब again, same theory लगाओ बच्चा. To what? इससे हम sentence begin नहीं कर सकते. Control, control के बाद कॉमा दिया है, इससे हम sentence begin नहीं कर सकते. तो P और Q वाले ऑप्शन को तो हम छोड़ देते हैं. ठीक है. अब आप देखिए, what you cannot, cannot, can not, ये मॉडल है. आपको हमेशा और हमेशा पता है मॉडल्स के बाद हमेशा और हमेशा V1 लगता है, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो. मॉडल्स हमेशा और हमेशा V1 के साथ यूज होते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल सी, he can go there, या he cannot drive a car. क्लियर? तो cannot के बाद क्या लगा? V1. ये लॉजिक क्लियर है. अब आपको यहाँ cannot दिया है, दैट मीन्स हम सेकेंड ट्रिक अपनाते हैं. cannot के बाद हमें V1 तो चाहिए भाई. V1 कहीं दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे V1. कंट्रोल, कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड, तो V1, V2, V3, ये यहाँ पर V1 फॉर्म है. मुझे एक चीज समझ में आ गई, मुझे S के बाद Q चाहिए, S के बाद Q चाहिए, लेकिन मैं S और Q को लास्ट में नहीं रख सकती. मुझे S के बाद अगर Q चाहिए तो R से और P से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होना है, R और Q से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होना है. S और Q देखो यहाँ साथ दिख रहे हैं और यहाँ से भी दिख रहे हैं. हम ये वाला थ्योरी अप्लाई करते हैं, SQRP. सी, SQRP.
RP. See, what you cannot control, shift your energy to what you can create instead of worrying about. तो अगर मैं SQRP पे वर्क कर रही हूँ तो ये तो ठीक नहीं लग रहा, अब मैं RSQ पे करती हूँ. Instead of worrying about what you cannot control, shift your energy to what you can create. Yes, this is the correct answer. तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक लॉजिक लगाया तो उसी पे ही करेक्ट आंसर आ जाएगा. You have to cross check, because आप हर एक रूल लगा के, हर एक थ्योरी लगा के आंसर चेक कर रहे हैं. तो करेक्ट आंसर है RSQP and the sequence will be RSQP. The correct answer RSQP. Now students, coming to the last segment of our exam, and that is synonyms. Part E is synonyms, and this year 10 questions are for synonyms because we have completed 40 questions and the last segment consists of 10 questions and that are for synonyms. These are the directions for synonyms. That means you have to choose the word nearest in meaning, और आपको पता है nearest in meaning मतलब synonyms. So let's check out the first sentence. Now she got the divorce within no time. उसको बिना किसी देरी के डिवोर्स मिल गया. अब डिवोर्स के लिए आपको सेम मीनिंग ढूंढना है. ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो मिल जाएगा. एंड दैट इज दिस, द वर्ड इज अ लीगल वर्ड. ओके, अब देखो हम ये देखते हैं डिवोर्स का सिनोनिम पनिशमेंट तो कभी भी नहीं होगा. क्या डिवोर्स का सिनोनिम पनिशमेंट होगा? नो. तो ये क्रॉस कर दो. अब ये ब्रेकिंग डाउन. अब आप लोग ब्रेकअप करते हो, ब्रेक डाउन अलग वर्ड है. सी ब्रेक डाउन हमने ये फ्रेजल वर्ब्स में किए हैं. ब्रेकअप होना, अलग हो जाना, कुछ रिश्ता कुछ भी टूट जाना, डिटैच हो जाना, अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, ब्रेकअप हो जाना. ओके, पर यहाँ ब्रेकिंग डाउन है. ब्रेक डाउन हो जाना दैट मीन्स कोलैप्स हो जाना. तो यहाँ पर डिवोर्स की बात हो रही है, किसी को कोलैप्स करने की बात नहीं हो रही. तो ब्रेकिंग डाउन नहीं. अगर यहाँ ब्रेकअप होता तो भी आप कंफ्यूज हो सकते थे, बट यहाँ ब्रेकिंग डाउन है, ब्रेकिंग डाउन नहीं. अब आप इसको ये कंफ्यूज मत हो जाना कि रिश्ता तोड़ रहे हैं तो कोलैप्स हो रहे हैं, शैटर हो रहे हैं. नो, उसके लिए भी अगर आप यूज करोगे तो आप ब्रेकअप करोगे, बट ब्रेकिंग डाउन नोवेयर. अब अगर हमारे दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए हैं, एक बचता है हमारा डिटैचमेंट, एक बचता है हमारा एनलमेंट. डिटैचमेंट का मतलब होता है सेपरेशन. चलो, डिटैचमेंट मीन्स सेपरेशन, मतलब अलग होना. ओके, लेकिन यहाँ पर लीगल वर्ड यूज है डिवोर्स. दैट मीन्स उसको डिवोर्स लीगली मिला है. डिवोर्स लीगली मिला है, विद द लीगल प्रोसीजर मिला है. एंड डिवोर्स इज अ लीगल प्रोसीजर टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम अ रिलीजियस सेरेमनी मैरिज. जो आपका रिलीजियसली अटैचमेंट हुआ था मैरिज के फॉर्म में, उसको सेपरेट करने के लिए जो प्रोसीजर है वो है डिवोर्स. आप अफेयर में डिवोर्स नहीं लोगे, आप कोर्टशिप में डिवोर्स नहीं लोगे, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो आप डिवोर्स नहीं लोगे. डिवोर्स तब होगा जब शादी होगी. ओके, जैसे देयर इज अ जोक कि व्हेन अ पर्सन विल गेट अ डिवोर्स, अ पर्सन विल गेट अ डिवोर्स व्हेन ही विल गेट मैरिड. यार शादी होगी उसके बाद तो डिवोर्स होगा ना. शादी के बाद, शादी से पहले तो डिवोर्स नहीं होगा. तो अगर अफेयर है उसमें तो डिवोर्स नहीं होगा. आप किसी से फ्रेंडशिप में हो उसके साथ डिवोर्स नहीं होगा. आप कोर्टशिप में हो उसके साथ डिवोर्स नहीं होगा. बिकॉज अफेयर, फ्रेंडशिप, कोर्टशिप ये लीगल आपको अटैच नहीं कर रहे हैं, ये लीगली आपको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं. आप किसी के साथ अफेयर में हो, अपनी चॉइस पे हो. द कोर्ट और द लीगल सिस्टम हैज नो डीलिंग विद दैट. बट अगर आप शादी कर रहे हो, दैट इज अ रिलीजियस सेरेमनी ऑफ ज्वाइनिंग टू पर्सन्स टुगेदर लीगली. लीगली आप शादी के बंधन में बंध रहे हो, लीगल मैरिज, इलीगल मैरिज नहीं. तो लीगल मैरिज अगर लीगल है दैट मीन्स तब आपको डिवोर्स मिलेगा. अगर मैरिज लीगल नहीं है तो डिवोर्स किस बेसिस पे दोगे? अगर आप केस फाइल कर रहे हो डिवोर्स के लिए तो यू हैव टू प्रूव इन द कोर्ट दैट योर मैरिज इज लीगल. आपने हिंदू जो हमारा रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग, अगर हम इंडिया में हैं तो हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग आपने शादी की है. क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हो तो भी वहां एग्रीमेंट साइन हो रहा है. दैट मीन्स कुछ तो प्रूफ है.
दैट मीन्स आप रिलीजियसली आप टाइड टुगेदर हो, आप एक बंधन में हो, तो उस बंधन को रिलीजियसली अलग करने के लिए डिवोर्स प्रोसीजर है। तो एनलमेंट इज द वर्ड इन विच इट मीन्स कि किसी भी रिलीजियस सेरेमनी को नल एंड वॉइड, एनलमेंट मीन्स टू डिक्लेयर नल एंड वॉइड, और वो भी मैरिज जैसे रिलीजियस सेरेमनी को नल एंड वॉइड, रद्द करना, कैंसिल करना, उसके लिए लीगल वर्ड है एनलमेंट। तो डिवोर्स का सिनोनिम होगा एनलमेंट, बिकॉज डिवोर्स एक लीगल प्रोसीजर है और लीगल प्रोसीजर के लिए लीगल वर्ड ही यूज होगा। आप अलग हो रहे हो वो अलग चीज है, लेकिन डिवोर्स ले रहे हो दैट मीन्स लीगली ले रहे हो ना यार, तो लीगली ले रहे हो तो लीगल वर्ड ही यूज होगा एनलमेंट। डिटैचमेंट सेपरेट हो रहे हो, आप अफेयर में अलग हो जाओ, आप फ्रेंडशिप में अलग हो जाओ, आप आप लिव इन रिलेशनशिप में हो, आप डिटैच हो रहे हो, दैट इज ओके। लेकिन अगर आप डिवोर्स ले रहे हो दैट मीन्स लीगली अलग हो रहे हो। तो लीगली जो वर्ड डिवोर्स के लिए सिनोनिम है दैट इज एनलमेंट, दैट मीन्स रद्द होना, उनकी शादी रद्द हो गई, दैट मीन्स वो अलग अलग हो गए। ओके, आई होप यू हैव डन विद दिस वर्ड। Next we'll move to the next question. So students, as I always say कि what we serve is the best. जितना detail explanation, जितना detail analyzation हम लोग दे रहे हैं, I don't think कि कहीं भी आपको इतना डिटेल में एनालाइजेशन पेपर का आज तक या अभी तक मिला है। ओके, सेकेंड थिंग, सिर्फ ये पेपर एनालाइजेशन कर रहे हैं डिटेल में, इट इज नॉट देयर ओनली, हम अपनी क्लास में भी ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनेशन हर एक वर्ड का, हर एक टॉपिक का, हर एक सेगमेंट का देते हैं। दैट इज व्हाई वी आर ऑन द टॉप। Okay, so again, just I want to say one thing, no need to fear when Neetu ma'am is here. Okay, let's check the next question. He was known for his gentle disposition. अब gentle मतलब innocent, यार सीधा साधा सा, बहुत सिंपल सा, बहुत मासूम सा, बहुत जेंटल सा। काउ इज अ जेंटल एनिमल, दैट मीन्स बहुत सीधा सा, कोई भी उसमें चतुर चालाकी, कोई भी बदमाशी, कोई भी नॉटीनेस नहीं है, बहुत सीधा सा है, इजी टू कनेक्ट है, किसी की भी बात मान जाता है, इतना मासूम सा है, इतना भोला सा है कि वो किसी की भी बात मान जाता है। ओके, ये ट्रिक याद रखिए। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। जेंटल का सिनोनिम हार्मफुल होगा यार। जेंटल हम बोल रहे हैं सीधा सा है, तो वो आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकता है, तो हार्मफुल नहीं, तो ये खत्म कर दो। अब कनिंग मतलब डिसीटफुल, डिसीट करना, धोखा, कनिंग मतलब धोखेबाज, चतुर चालाक धोखेबाज, कभी भी धोखा देगा, कनिंग है यार। फॉक्स इज अ कनिंग एनिमल, धोखेबाज, लोमड़ी जैसा चतुर चालाक, पर वो तो हार्मफुल नहीं है यार, वो जेंटल है, तो ये कनिंग को भी खत्म कर दो। अब दो ऑप्शन बचते हैं, एडजस्टिंग और एमिएबल। एडजस्टिंग ओके, हम इसको कंसीडर करेंगे, पहले आप एमिएबल को देखो। एमिएबल मैंने आपको एमिटी, remember I gave you the example of Amity University in relation to this word amiable or amity. Amity means friendly, amity means friendly, amiable means easy to connect, friendly बहुत अच्छा, जो बहुत लोगों से कनेक्टिविटी बना लेता है, बहुत जल्दी बना लेता है, बहुत फ्रेंडली है, कभी नाराज नहीं होता, कभी भी हार्मफुल नहीं है, बहुत इनोसेंट है, बहुत मासूम है। सो कमिंग टू दिस, द करेक्ट आंसर इज एमिएबल। सो ऐसे ही हम डायरेक्ट आंसर पे नहीं पहुंच जाते हैं, हम रूट वर्ड से शुरू करते हैं, एमिटी, एमिएबल, ऐसे। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ द हार्डर वी किक द बेटर द बॉल बाउंस बैक। ऑप्शंस को छोड़ो, अब सेंटेंस समझो। जितनी तेज आप एक बॉल को किक करोगे, जितनी तेज आप किक करोगे उतनी तेज ही वो बाउंस बैक होगी। क्लियर? द हार्डर वी किक द बेटर द बॉल बाउंस बैक, उतनी ही तेज वो वापस आएगी। अब जितनी तेजी से बॉल को फेंकोगे उतनी तेजी से वो बाउंस बैक करेगी। क्लियर? हमें सिनोनिम ढूंढना है बाउंस बैक का। सी, असेंड्स। असेंड आपने बचपन में पढ़ा है बच्चा, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब ऊपर जाना, 1 2 3 4 ऐसे ऊपर जाना, बढ़ना, ऊपर की तरह बढ़ना। तो असेंडिंग, बाउंस, यहां हम बात कर रहे हैं बैक, यहां हम बात कर रहे हैं असेंड्स। असेंड मतलब ऊपर जा रहा है, ग्राफ असेंड हो रहा है। सी, अगर मैं किसी ग्राफ की बात करूं
तो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इन कॉन्टेक्स्ट टू द प्रेजेंट सिचुएशन द नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स इज असेंडिंग, ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स बढ़ रहा है. तो बाउंस बैक का सिनोनिम इंक्रीज होना, कहीं से भी नहीं. ओके, अब इन्फ्लेट्स कहाँ पढ़ा है ये वर्ड, हमने साइंस में पढ़ा है. इन्फ्लेट्स मीन्स फिलिंग अ बलून विद द गैस. आप बलून को जब फुलाते हो, बलून में गैस इंसर्ट करते हो तो वो बड़ा हो जाता है, दैट मीन्स इन्फ्लेट्स. डिफ्लेट्स इसका ऑपोजिट, बलून में से गैस बाहर आ गई तो वो डिफ्लेट हो गया. अब मुझे बताओ, बाउंस बैक और इन्फ्लेट्स कहीं से सिनोनिम है. हम ये बोल रहे हैं, आप अगर सेंटेंस ही समझो, ऑप्शंस इजीली आपको समझ में आ जाएंगे. हम जितनी तेज बॉल को किक करेंगे उतनी तेज बॉल वापस आएगी, बॉल बाउंस बैक करेगी. इन्फ्लेट कह रहा है बलून में हवा भर दो. कुछ कनेक्शन है सिनोनिम में? कहीं से यार कुछ कनेक्शन नहीं है. ये कह रहा है बलून में से हवा बाहर निकाल दो, इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है ना. रिकॉल का मतलब ही होता है टू कम बैक विथ फोर्स. रिकॉल का मतलब फोर्स. तो अगर आपको इसका सही ऑप्शन नहीं भी आ रहा तो यार रॉन्ग ऑप्शंस तो समझ में आ रहे हैं, रॉन्ग ऑप्शंस हटा दोगे, राइट आंसर ऑटोमेटिकली दिख जाएगा. दिस इज ऑल्सो थ्योरी टू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन. अगर आपको रॉन्ग, आपकी अगर वोकैबुलरी अच्छी है बच्चा, अगर आपका वोकैबुलरी अपडेटेड है, आपने वोकैब अच्छे से पढ़ी हुई है, तो आपको ये मीनिंग्स, और ये मीनिंग्स तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इजी तरीके से दिए हुए हैं कि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आए ही ना. कि ये जितने भी वर्ड्स हैं आपने बचपन से साइंस की बुक में पढ़े हैं, मैथ्स की बुक में पढ़े हैं, तो नॉट अ सिंगल वर्ड विच इज अननोन टू यू. पूरे पेपर में मैंने कहीं भी ऐसा कोई वर्ड नहीं देखा जो आपने कभी भी ना पढ़ो. एज आई ऑलवेज से कि जब आप हमसे पढ़ोगे, जब आप हमारी टेक्निक से पढ़ोगे और जब आप एनडीए का पेपर देखोगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस नहीं होगा जिसको देख के आपको लगे कि आप यार ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है. नथिंग विल बी ग्रीक एंड लैटिन टू यू ऑल. ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो आपको इनकॉम्प्रिहेंसिबल है. सब चीज आपने पहले से ही कम से कम 10 से 15 बार की होगी. दिस इज माय ओपन चैलेंज टू यू ऑल. ओके, तो लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. द आंसर इज रिकॉइल. नाउ आई प्लान एंड एग्जीक्यूट. अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सारे क्वेश्चंस ना आपके लिए बिल्कुल स्पेशली डिजाइन किए गए हैं, बिल्कुल स्पेशली कस्टमाइज एंड डिजाइन फॉर यू ऑल. नाउ सी, आई प्लान एंड एग्जीक्यूट. प्लानिंग करना और एग्जीक्यूट करना मीन्स उस प्लान को कैरी करना, टू कैरी ऑन करना. टू कैरी ऑन करना मीन्स उस प्लान पे वर्क करना. चलो इजी वर्ड्स पहले दे देते हैं ताकि आपको ऑप्शंस चेक करने में आसानी हो. आई प्लान एंड आई वर्क ऑन दैट प्लान. इजी. एग्जीक्यूट करना, किसी प्लान को एग्जीक्यूट करना मतलब उस प्लान पे वर्क करना, उस प्लान पे काम करना. अब ऑप्शन देख लो यार. डिजायर. डिजायर मतलब विश. आप प्लान पे काम कर रहे हो, आप इच्छा नहीं कर रहे हो. डिजायर, माय बिगेस्ट डिजायर. योर बिगेस्ट डिजायर टू यू, योर बिगेस्ट डिजायर टू बिकम एन ऑफिसर इन डिफेंस. ओके, तो सबसे बड़ी इच्छा. डिजायर मतलब विश. तो क्या एग्जीक्यूट का सिनोनिम डिजायर? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं. डिबेट. अब आप प्लान को वर्क कर रहे हो कि आप डिबेट कर रहे हो? आप बहस कर रहे हो कि काम कर रहे हो? काम कर रहे हो यार, आप बहस थोड़ी कर रहे हो. तो इसको भी क्रॉस कर दो. दो बचे हैं, अकम्प्लिश और डिस्कार्ड. अब ये डिस्कार्ड कहाँ पड़ा है? डेली. डेली देखते हो आप वर्ड. आपको याद है जब भी मैं आपको कोई वर्ड देती थी, मैं आपको कोई ना कोई हिंट देती थी उस वर्ड को याद रखने का. डिस्कार्ड, मैसेज डिस्कार्डेड. रिमेंबर इन द मोबाइल, द मैसेज इज डिस्कार्डेड. मैसेज डिस्कार्ड हो गया, रिजेक्ट हो गया. तो डिस्कार्ड मतलब रिजेक्ट, डिस्कार्ड मतलब कैंसल. तो एग्जीक्यूट करना मतलब प्लान पे काम करना, डिस्कार्ड मतलब कैंसल करना या रिजेक्ट करना. तो क्या ये इसका सिनोनिम है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. एक ही बच रहा है, accomplish. accomplish the task, उस टास्क को पूरा करो. और accomplish मुझे लगता है कितनी बार आपने डे टू डे लैंग्वेज में यूज किया है. आई वॉन्ट टू accomplish this task. तो accomplish this task, मैं इस टास्क को पूरा करना चाहता हूँ. तो वही तो वो कर रहा है, वो उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा है, वो उस प्लान पे वर्क करके उस प्लान को accomplish कर रहा है, उस पे काम कर रहा है. तो राइट आंसर इज
सी। ओके, एनर्जी लेवल डाउन नहीं होना चाहिए, हमेशा एनर्जी लेवल हाई रहना चाहिए। हाउ इज द जोश माय बॉयज? इट शुड बी हाई। Now he listened to me with equanimity. Now equanimity अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, not to worry, check out the options. हमें इसका सिनोनिम ढूंढना है। सिनोनिम में केयरलेसली, उसने मेरी बात इक्विनामिटी से सुनी। इक्विनामिटी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप ऑप्शंस देखो, केयरलेसली, एक्साइटेडली, पेशेंटली, हाफ हार्टेडली। हाफ हार्टेडली मतलब आधे दिल से सुनी। यार आधे दिल से और पूरे दिल से क्या बात सुननी है, सुनो, नहीं सुननी मत सुनो। तो ये हाफ हार्टेडली तो खत्म कर दो। अब इक्विनामिटी का मतलब होता है बहुत पेशेंस रखे, बहुत धीरज रखे, बहुत ध्यान से। तो यहाँ पर आंसर है पेशेंटली। तो विथ इक्विनामिटी मीन्स उसने बहुत पेशेंस रखकर मेरी बात पूरी सुनी। ओके, so the right answer is C. Now the whole thing was a futile exercise. अब इस बात पे तो I can give a open challenge to my students कि ये वर्ड आप ही बताओ कितनी बार किया था। कम से कम 200 से 250 बार ये वर्ड तो रिपीट हो चुका था हमारी क्लासेस में, और मैंने फ्यूटाइल के बहुत सारे सिनोनिम्स दिए थे। एंड आई एम नॉट गिविंग दिस एज अ जोक। फ्यूटाइल हमने 200 to 250 टाइम्स डिस्कस किया है यार। हम डेली क्लास में इस वर्ड को किसी ना किसी फॉर्म में अपने लेक्चर में देखते ही थे। नाउ फ्यूटाइल मींस सिली, फ्यूटाइल मींस यूजलेस, फ्यूटाइल मींस नॉनसेंस, फ्यूटाइल मींस बेसलेस। रिमेंबर इतने सारे वर्ड्स दिए थे मैंने आपको। द डिस्कशन वाज फ्यूटाइल मतलब डिस्कशन यूजलेस था। अब फ्यूटाइल का आपको सिनोनिम ढूंढना है ना। फ्यूटाइल अगर आपको ये मीनिंग पता है तो कॉस्टली इसका सिनोनिम है नो। इनडिसिसिव, पहले ये इनडिसिसिव से पहले डिसिसिव वर्ड देखो। डिसिसिव मतलब चीटिंग, किसी को डिसीट करना, चीट करना। इनडिसिसिव सॉरी वो डिसीट होता है, सॉरी। इनडिसिसिव मतलब जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। डिसिसिव मतलब जो डिसीजन ले सकते हैं, इनडिसिसिव जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सो फ्यूटाइल यूजलेस है, इनडिसिसिव मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सो दिस इज भी नहीं। सक्सेसफुल, फ्यूटाइल यूजलेस, सक्सेसफुल उसका सिनोनिम कहीं से नहीं होगा। आंसर इज पॉइंटलेस मतलब यूजलेस मतलब बेसलेस मतलब नॉनसेंस मतलब सिली। तो फ्यूटाइल मींस यूजलेस, दैट मींस पॉइंटलेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब he was too cunning for her. अभी जैसे मैंने by mistake I just pronounced the word deceit. Decisive से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। deceit, deceit मतलब धोखा देना, चीट करना। Now अगर हम deceit की बात कर रहे हैं, cunning मतलब धोखेबाज। तो अगर मैं इसको हटा भी देती हूँ, आपको cunning से समझ में आ रहा है, cunning मतलब धोखेबाज, चतुर, चालाक जो धोखा देता है। He was too cunning for her. वो उस लड़की के लिए बहुत ज्यादा चतुर, चालाक और धोखेबाज है। उस लड़की को उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ना सी, कनिंग का सिनोनिम केपेबल होगा। हम उसकी केपेबिलिटी, क्षमता की बात नहीं कर रहे हैं। केपेबल मतलब क्षमता होना, चलो हिंदी में छोड़ो। केपेबल मतलब कैलिबर होना, केपेबिलिटी होना। तो हम उसकी केपेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम उसकी फिटनेस की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो उसके बिहेवियर की बात कर रहे हैं, फिजिकल फिटनेस की बात नहीं कर रहे हैं। इंटेलिजेंट, कनिंग का कहीं से भी सिनोनिम इंटेलिजेंट तो मैच होता ही नहीं है। डॉजी मतलब कनिंग, डॉजी मतलब बहुत ज्यादा होशियार, बहुत छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला, बहुत चतुर चालाक, कभी भी विश्वास नहीं कर सकते उस बंदे पे। तो आंसर इज डॉजी। तो आई होप 47 क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। Until now आपने जितने क्वेश्चंस किए सब समझ में आ गया। Now coming to the last segment of our paper, only 3 questions are left. Let's check out the last 3 questions. Now students, check out the next question, question number 48. The decision is crucial for me. अब बच्चा इतने इजी क्वेश्चन देके उनका हक बनता है कि 2-3 क्वेश्चंस तो वो थोड़ा सा घुमा दे यार। थोड़ा सा तो घुमाना पड़ेगा आपको। पूरा पेपर
इतना इजी दे दिया, तो लास्ट का सेगमेंट उन्होंने जानबूझ के आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, थोड़ा सा घुमा दिया है, एज इट इज अ ट्रेंड ऑफ एनडीए कि पूरी चीज सीधे सीधे दे देंगे तो फिर वो यूपीएससी लेवल कैसे होगा। ओके, तो चेक आउट दिस, द डिसीजन इज क्रूशियल फॉर मी। अगर मैं क्रूशियल को इजी वे में लिखूं तो इंपॉर्टेंट, विच नीड्स अटेंशन, या अगर और भी इजी कर दूं तो डिफिकल्ट। क्लियर, ये दोनों वर्ड सबसे पहले क्लिक करेंगे अगर मैं वर्ड क्रूशियल देखूंगी। अब मैं इसके ऑप्शंस देखती हूँ फॉर द सिनोनिम। अब मोमेंटस, मोमेंटस मीन्स मूवमेंट की बात हो रही है, यहाँ मैं डिफिकल्ट लेवल की बात कर रही हूँ, वो मूवमेंट पे चले गए, मूवमेंट पे चले गए, मोमेंटस पे चले गए, सो ये तो नहीं। अब इनेप्ट, अगर आप इनेप्ट वर्ड देखिए, इनेप्ट वर्ड मीन्स, हमने एक वर्ड किया था सी एड्रॉइट, एड्रॉइट मीन्स एक्सपर्ट, इनेप्ट मीन्स हु इज नॉट स्किल्ड। यहाँ अगर मैं एड्रॉइट का एक और सिनोनिम लिखूं तो अनस्किल्ड, सॉरी स्किल्ड, एड्रॉइट का सिनोनिम स्किल्ड और इसका एंटोनिम आएगा अनस्किल्ड। तो वन हु इज नॉट स्किल्ड जिसे हम अनस्किल्ड भी कह सकते हैं। तो इनेप्ट मीन्स वन हु इज अनस्किल्ड। हम यहाँ बात कर रहे हैं क्रूशियल डिसीजन की, एक्सपर्ट और स्किल की बात नहीं कर रहे, तो इनेप्ट को भी खत्म कर दो। दो बचे नेचुरल और प्रिमिटिव। अब द डिसीजन इज क्रूशियल का सिनोनिम नेचुरल आएगा। आप नेचुरल रख के देखो वहां वर्ड, द डिसीजन इज नेचुरल फॉर मी, नो, तो ये भी नहीं। अब बचता है प्रिमिटिव। अब आप बोलोगे यार प्रिमिटिव मैम हमने तो एंशिएंट के फॉर्म में पढ़ा है, प्रिमिटिव एज आपने एंशिएंट के कंसेंट या एंशिएंट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है, बट बच्चा प्रिमिटिव का एक और मतलब ये भी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू प्रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कैरी ऑन। So the word primitive can be used for crucial because as per the option, no other option is giving the nearest meaning for crucial. तो crucial का अगर options में से best synonym ढूंढे तो वो primitive है। Clear? So I hope this is clear to you. Moving to the second last question of the paper, and that is question number 49. The media went into a frenzy about the case. और ये तो चल रहा है यार। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस ढूंढने से पहले अब ये बताओ, व्हाट यू आर वाचिंग ऑन द न्यूज चैनल द होल डे, खुद ही बता दो। अब यहाँ मीडिया दिया हुआ है, सी मीडिया, न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल्स, ये सब क्या कर रहे हैं बेटा आजकल? आज की बात बताओ, पहले मत जाओ, करंट अफेयर्स तो आप पढ़ ही रहे हो। करंट अफेयर्स में व्हाट आर मीडिया इज डूइंग? मीडिया इज जस्ट बीइंग क्रेजी अबाउट एसएसआर केस, सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर, रिया चक्रवर्ती को लेकर, दे हैव जस्ट गॉन क्रेजी। तो मीडिया वेंट इनटू अ फ्रेंजी, अगर मैं यहाँ लिखूं जस्ट गॉन क्रेजी, जस्ट गॉन मैड, मैनिया, मतलब बिल्कुल पागल हो गए यार, कुछ नहीं मिल रहा है उनको, हमारी कंट्री की इकोनॉमी ड्रॉप हो रही है उसकी फिक्र नहीं है, वो नहीं बताएंगे। सो मेनी पेशेंट्स आर डाइंग फ्रॉम द so many patients are dying due to corona, उनकी फिक्र नहीं है, बट सुशांत सिंह राजपूत की ज्यादा फिक्र है, that means they have gone crazy। अब अगर इसी थीम से हम ये ऑप्शंस देखें, क्लियर, तो into a frenzy को अगर मैं crazy थ्योरी पे वर्क करती हूँ तो क्या crazy का ऑप्शन सिनोनिम में साइलेंट होगा? नो। क्रिएटिव होगा? नो। रॉन्ग, वो पागल हो रहे हैं, मैडनेस शो कर रहे हैं। Have you observed the journalists shouting like anything? How they are just doing debate on the news channels? तो एक ही वर्ड ठीक जाता है यार, they have gone crazy। तो when they have gone crazy, तो वो wrong नहीं है यार, वो crazy हो गए हैं। अब berserk, berserk means the same, just going violent or uncontrolled। अनकंट्रोल्ड हो जाना, that means berserk हो जाना, तो into a frenzy, correct synonym berserk। Now coming to the last question of our exam, India English exam 2020। Now check out the last question, थोड़ा सा difficult है, but okay यार, ये तो वाजिब बात है, valid बात है, level difficult तो चाहिए। तो let's check the question। He has been yearning to go home, वो घर जाने के लिए yearn कर रहा है। अब घर जाने के लिए आपके सबसे पहली फीलिंग क्या आती है? इफ यू आर समवेयर आउट ऑफ द होम, घर से बाहर हो तभी तो घर जाना है, घर से बाहर हो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ,
घर से बाहर अगर हो तो घर जाने के लिए तरस रहे हो, घर को मिस कर रहे हो। तो यहाँ yearning मीन्स तरसना। सी कुछ भी नहीं आ रहा ना क्वेश्चन में, एक लॉजिक अपनाओ कि वो अगर he has been yearning to go home, आपको क्लियर लिखा है to go home। मैं आपको हर बार बोलती हूँ जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना बच्चा, उसके लिए हिंट क्वेश्चन में ही छुपा है, बस आपको थोड़ा सा डिटेक्टिव बन के वो हिंट ढूंढना है, और जहां आपने हिंट ढूंढ लिया क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब वो घर जाने के लिए तरस रहा है। अब आप सिनोनिम देखो, डिक्लाइनिंग करना, मना करना, घर जाने के लिए मना कर रहा है। डिमांडिंग, घर जाने की डिमांड कर रहा है, घर जाने की रिक्वेस्ट कर रहा है। बेगिंग मतलब भीख मांगना इज नॉट द थिंग इन द कॉन्टेक्स्ट, बेगिंग मतलब रिक्वेस्ट करना। ओके, अब ये दो वर्ड्स तो ठीक है मिलते जुलते हैं, ये तो गलत हो गया। हैंकरिंग, हैंकरिंग इज द नियरेस्ट सिनोनिम। हैंकरिंग का मतलब भी होता है तरसना, हैंकरिंग मतलब तरसना, तो वो घर जाने के लिए तरस रहा है। ओके, तो वी हैव सॉल्व्ड 50 क्वेश्चंस टुडे and we have completed the detailed analyzation of NDA exam 2020. So dear friends, dear students, we have done the complete analysis of NDA English exam 2020 and I hope you have got what I have taught you, what I have explained you. And for more information, just contact us on the address given below, and we have provided our link underneath this video, underneath this screen, so that you can contact us. As I always say, we are the best, so you must choose the best. So for more information, just contact Defence Services Academy. Thank you.